So my name is Rakhi Sharma. You guys already know me very well, the founder of Universal BFF. And this is my first podcast as a host. And I'm really lucky that I've not invited the guest to whom I doesn't know. My guest is my student. She's been preparing for her studies, then further education, then her career, then her skills, then choosing her passion, then goals and hobbies, everything from my followings, my teachings. She's Aarti Sahu. You will soon meet her now. She's there with me and she has came long from Jamshedpur to Mumbai to meet me and to share her experience, what she has done in the last 8 years. Since the day she has started learning law of attraction, then she gone through Reiki healing, then she gone through Ho'oponopono healing. She has done lots of manifestations and healings. And last but not the least, the very biggest manifestation she has done, that she has reached to Vipassana. 3 months back, I met her and she just showed me her diary, which was a diary of vision board, and just she told me कि इसमें क्या चीज़ की कमी है मैम, आप वो ऐड कर दीजिए. I gone through the diary and everything was like mental, physical, emotional healing. Then career में क्या लेना है, जो हम vision board में ऐड करते हैं, उसने vision diary बनाई थी. I just mentioned that you must go for a Vipassana for 10 days in Igatpuri. That is an international Vipassana academy. And for her, it was like, I can do anything, but this is a very big challenge for me because my parent won't allow me to go there because I've just completed my 12th. And just I told her, just likhne mein kya jata hai, likh le. And she wrote within 2 months, she manifested and she did it and she's here. So I want her to speak now. So here is Aarti. Aarti, you can speak something about yourself. So my name is Aarti Sahu. Okay. I reside Jamshedpur, and I have came here since the last week. I was in Vipassana, and from the past 2 or 3 days, I've been staying with Rakhi teacher. And we had a lot of fun. We went to a lot of places like Taj Hotel and Gateway of India, Siddhi Vinayak restaurant. So now I'm here. I'm very happy that my biggest manifestation, of course, she told me that Vipassana is my biggest manifestation, but here the seat is the biggest because I have got the opportunity to sit here. So thank you so much, ma'am, for having me here. To speak, to share my experience to billions of people. So thank you so much, ma'am, for giving me the opportunity to speak in this platform. And I'm very happy to start a conversation with you. And this is a different kind of a podcast, I guess, because usually सारे podcast कैसे रहते हैं कि scripted रहते हैं. कौन आने वाला है, उसको मेल्स आता है, उसकी लाइफ की n नंबर ऑफ चीज़ें निकाली जाती, उसको क्या बेचना है, उसको क्या प्रमोट करना है. गेस्ट का एक्चुअली ये रहता है, बट हमारे गेस्ट को कोई चीज़ सेल नहीं करना है. हमारा गेस्ट कुछ प्रमोशन के लिए नहीं आया. हमारा गेस्ट इसलिए आया कि जितने भी टीनेजर से लेकर एडोलेसेंस की जो उम्र के साथ गुजरते जो बच्चे, जो इसी चीज़ में फंसे रहते कि 10th में कितना परसेंटेज लाना है, 12th में कितना परसेंटेज लाना है, वो जोन के जो बच्चे रहते हैं, वो बच्चे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो मैंने जब ये आरती से जब मिली थी, तो उसमें स्टडीज़ पढ़ने की ना बहुत क्यूरियोसिटी थी. उसको हमेशा किसी ना किसी को बीट करना था. मैम ये फर्स्ट आती है, इसको मुझे बीट करना. अगर कोई गलती से फर्स्ट आ गया और इसको सेकंड कर दिया, तो सेकंड रैंक होल्डर इसका दुश्मन. तो मुझे ऐसा लगा कि हर बच्चों में ना ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स की एक्चुअली गलती हो जाती है ना कि मेरा बच्चा फर्स्ट ही आए, मेरा बच्चा 90% ही स्कोर करे. बट हमें अपने बच्चों में काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, सर्व, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके मोरल वैल्यूज़ उनके सब्जेक्ट में रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के सब्जेक्ट में वो चीज़ें नहीं रहती है. तो वो चीज़ें मैंने इसके लिस्ट आउट किया. और शुरू से पूछते हैं ना, आरती के एफर्मेशंस क्या थे, आरती कब मेडिटेशन करती थी, आरती के घर वाले ने इसको कैसे जज किया, आरती ने अपने फ्रेंड्स के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई किया. मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को रिप्रोग्राम करेगी. तो शुरू से बताओ आरती कि सबसे पहले तुमने क्या किया. आपको शॉर्ट में जानना है कि लॉन्ग में जानना है? ब्रीफ करो. सो स्टार्टिंग में जब सुनी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो एवरीवन मस्ट थिंक ना कि ये क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है.
सो देन फिर आपने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, manifestation. I have learned like manifestation and many more thing, hoponopono prayer. So manifestation मैं बताती हूँ. manifestation ने यूट्यूब में you must have heard ना कि manifestation का मतलब होता है कि you have to make one list, okay, like whatever you want to achieve in your life. You have to, like, if you want to score good marks, so you have just written in your diary that यूनिवर्स मेरे को अपने बोर्ड्स में 95+% लाने हैं, ओके. हाँ. अब मैं लिख दिया आपने, एंड मोस्ट पीपल डिड दिस मिस्टेक कि उन लोग को लगता है कि विश हमने मांगा एंड वो मिल जाएगा. भाई कैसे मिलेगा तुझे विश? एक्शन नहीं ले रहे हैं लोग. अगर इफ लेट्स टेक वन एग्जांपल, इफ यू वांट अ ग्रेट एंड अ हेल्दी बॉडी, व्हाट डू यू डू? I will apply all the healthy habits to eat, to exercise, to meditate, to surround myself with nature. I will do all these things for a Like- healthy body. You will start caring your body. Correct. You will start eating healthy food. Nutritious food. Not you're eating junk, because of course you know कि junk is जंक किया तो शरीर भी जंक Yes. लग जाएगी. हाँ लग जाएगी. So क्या करते हो? हेल्दी बॉडी चाहिए, उसमें आपने एक्शन लिया, आपने अपने बॉडी को ख्याल रखा, हाँ. आपने अच्छा खाना खाया, आप उससे लगा वो चीज़ जैसे जंक आपकी बॉडी के लिए इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, हाँ. तो आपने क्या किया? जंक नहीं खाना स्टार्ट किया. बट तो ये इट क्या- इज अ बिग डील ना कि एक होता है कि अगर मैं मेरे पास जब एज आई वाज अ योगा टीचर फॉर द लास्ट 8-9 इयर्स, अरे छोड़ देंगे लेकिन मन नहीं मानता ना. हाँ. और जब तक मन ही खुश नहीं रहेगा तो हम तो दुखी रहेंगे, तो हम बीमार पड़ जाएंगे ना. तो एज पर मी, जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो अपने आप अपनी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती है. जैसे मुझे भी जंक फूड बहुत पसंद था. आई हैव बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई. आई वाज अ वड़ा पाव लवर. बहुत ज़्यादा पसंद था. बट द डे आई स्टार्टेड सेइंग आई एम हेल्दी, आई एम हील्ड, आई लाइक न्यूट्रिशियस फूड, मेरे डाइट अच्छे हो गए, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब भी मैं वड़ा पाव खा रही हूँ मुझे माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है. जब भी मैं ऑयली खा रही हूँ मुझे एसिडिटी हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. और फिर धीरे धीरे वड़ा पाव छूट गया. मतलब कि व्हेन वी डिसाइड कि मुझे चीज़ नहीं करना है, ऑन द अदर हैंड ऐसा होता है कि हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देता है. हाँ. एज यू सेड कि मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है, तो सिर्फ लिखने से नहीं होगा. जब हम लोग एवरीडे एफर्म करेंगे मैं अच्छा मार्क्स स्कोर कर रही हूँ, उसके बाद और हम क्या करेंगे? हम अपने प्लानर बनाते हैं. मुझे लगता है यू हाँ, मेड दैट हाँ. प्लानर मॉर्निंग Yes. 5:30 से लेके रात के 10:30 का. यू आर हैविंग योर टू डू लिस्ट एंड द प्लानर कि किस समय उठना है, मैं क्या करूंगी एंड ऑल दैट. एंड फिर वो प्लानर यू ऑलवेज यूज टू लाइक कंसिस्टेंट होने की कोशिश की. समटाइम्स तो ब्रेक होता ही होगा जहाँ तक मुझे पता है. Yes. हाँ वो तो होता है. हमारा जो जनरेशन है वो डिस्ट्रैक्शन वाला जनरेशन है. Yes. बार बार ऐसा होता होगा, अरे यार आज छोड़ दो, आज संडे है, आज तो आराम से उठना है. Yes. तो मैं यूजुअली संडे का जो सैटरडे का जो मेरा स्टेटस रहता है हमेशा व्हाट्सएप का, वो ये रहता है कि संडे को आप कैसा कैसा स्टार्ट करें. संडे इट्स अ डे ऑफ सन. Sun. सन इज स्टिल राइजिंग एंड सेटिंग डाउन ऑन द राइट टाइम. मतलब सन के लिए वो संडे नहीं है, उसके लिए वो ऑल डे जैसा ही है. तो वाई वी आर चूजिंग संडे एज अ रेस्ट डे. एंड ऐसा होता है कि मेरे सारे जो स्टूडेंट्स थे उनका चालू हो गया कि नहीं भाई, हम भी संडे को बाकी वीकडेज के जैसे ही स्पेंड करेंगे. तो जो टू डू लिस्ट वाज, एक टू डू लिस्ट अपना बताओ कि व्हाट वाज योर टू डू लिस्ट. अभी क्या अभी क्या अभी क्या. स्टैंडर्ड 10th में कैसा था, फिर स्टैंडर्ड 12th में कैसा बनाया आपने? Okay, let me tell you. So, as you said कि everyone make to-do list. हाँ. I also make to-do list. But literally I'm saying, हाँ. like I have written कि क्या क्या करना, what I have to do this day. हाँ. But literally ये नहीं होता. नहीं होता है फॉलो. नहीं होता है. Because जब जैसे सुबह उठी, लिखी ये दिन भर क्या करना है, एकदम मन से किया, बट होता है ना बीच में नहीं हो पाता है. तो फिर धीरे 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 लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड कि जब आप बैठो, जैसे अभी आप बैठे, अभी क्या करना है 2 घंटे में, राइट. तो ये करना बेबी है. स्टेप्स लेने. यस, डायरेक्टली एकदम हम लोग वी आर नॉट गोइंग कि विजन पे चले गए. विजन डायरेक्टली आपको नहीं मिल जाएगा सब कुछ. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे 1. बेसिक लेना. यस. तो मैं पूरा दिन का बनाती थी, कुछ ना कुछ तो छूट जाता था. हाँ. देन आई सेल्फ इंट्रोस्पेक्टर्स कि क्या हो रहा है आरती, व्हाई आर यू नॉट गिविंग योर फुल पोटेंशियल देयर. हाँ.
तो फिर मैंने सोचा कि कहीं लैग कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ। इसको मुझे समझने में 6 से 8 महीने लगे हाँ। कि कहाँ हो रहा है। रोलर कोस्टर चल रहा था, अ, एक्सपेरिमेंटेशन हाँ, चल रहा था कि चल रहा था। कैसे करे कि भाई ये कंसिस्टेंसी के साथ होने लग जाए और यस। मेरा जो गोल है मैं वहां तक पहुंच जाऊं। हाँ, तो फिर मुझे समझ में आया कि आरती जब तुम बैठो, एक प्रॉमिस करो, यू मेड वन रेजोल्यूशन कि अभी मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। इसमें कितने टाइम लगेंगे, डोंट थिंक। हाँ, एक एवरेज आपको अपने माइंड में रखना है कि ये 2 घंटे लगेंगे। हो सकता है वो 2 से ढाई घंटे हो सकते हैं, बट 4-5 घंटा नहीं होगा। So have you ever studied continuously for 2 hours? नो, आई Possible नहीं विल है। टेक अ ब्रेक बिकॉज अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो योर माइंड विल गेट हैंग। एक्चुअली कहते हैं ऐसा कि रिटर्न भी है बुक में, और हाँ। जितने भी टीचर्स जब बीएड की पढ़ाई करते हैं तभी भी ये चीज़ उनको बताया जाता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, जब हम कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं, कोई मीटिंग में जाते हैं, तो पहला 15 मिनट और आखिरी का 15 मिनट हर चीज़ याद रखता है, बीच का सब ट्रू। बाउंस हो जाता है। तो इसीलिए स्कूल टाइम में हमारा जो लेक्चर्स रहता था ना 40 मिनट्स का रहता था, क्योंकि टीचर को आते गुड मॉर्निंग टीचर कहते सुनते बोर्ड पर सब कुछ लिखते 10-15 मिनट चला जाता था। उसके बाद जो टीचर पढ़ाए तो आधा घंटा एग्जैक्ट बचा, हाँ। तो वो फर्स्ट 15 मिनट्स एंड लास्ट 15 मिनट्स बच्चे को पूरा याद हो जाए। पूरा याद होता था। तो राइट। इसीलिए हर एक लेक्चर्स को ना 40-40 मिनट्स बनाया गया। एंड मुझे भी इसलिए लगता है ना कि कोई भी प्रैक्टिसेस हो उसको 2 घंटा 3 घंटा का कंटिन्यूअस नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का मॉर्निंग का भी जो प्रैक्टिसेस मैं सबको देती हूँ 1.5 से 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है। तो कंटिन्यूअसली कोई करने में इंटरेस्ट भी नहीं फील करता है, तो मेरा है कि ठीक है आधे घंटे में तुम ग्रैटिट्यूड लिख लो, तुम अपने कुछ काम निपटा लो, फिर तुम कुछ और कर लो, फिर तुम कुछ और काम निपटा लो, फिर तुम कुछ और कर लो। लाइक मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स है उसको भी बारी-बारी से अगर हम अप्लाई करें ना, तो वो भी हम पूरी प्रोग्रामिंग के साथ कर पाते हैं। अदरवाइज़ हमारे दिमाग में रहता है, अरे स्कूल जाने का टाइम हो गया, अरे ट्यूशन जाने का टाइम हो गया, अरे जल्दी-जल्दी लिख लो, कुछ भी थैंक यू लिख के खत्म कर देते हो। सो दिस थिंग हैपेंस। सो आरती स्कूल टाइम का मुझे तुम्हारा मैनिफेस्टेशन बताओ कि स्कूल की और कॉलेज की जो तुम्हारी 11-12 जूनियर कॉलेज की जर्नी हुई, एजुकेशन सेक्टर में तुमने क्या-क्या मैनिफेस्ट किया? Okay, so earlier I was in JAG board. I हुँ, have completed my 10th हुँ, in state board हुँ, and I was always dreaming कि मुझे भी ICSE बोर्ड में पढ़ना है, हुँ, but due to financial crisis in my family अब नहीं हो पाया। हुँ, So then I accept that reality that time कि नहीं हुआ, ठीक है। Then आपने बोला था कि आरती कोई बात नहीं, यूनिवर्स में हैव अ ब्यूटीफुल प्लान फॉर यू, जस्ट हैव पेशेंस, जस्ट हैव फेथ इन देम। तो उस टाइम तो भाई आपका बात तो लग रहा था मेरे को कि नहीं, क्या बोल रही टीचर, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपको वो मेरे फैमिली को मनाना चाहिए कि ये बच्ची को पढ़ना उतने बड़े स्कूल में क्यों नहीं बोल रहे हो। हाँ। तो उस टाइम तो मुझे बहुत गुस्सा आया था ये समझने में, ये जो अभी मैंने बोला ना कि यूनिवर्स में हैव सम ब्यूटीफुल प्लान फॉर यू, ये चीज़ समझने में मुझे मैं 2 हाँ से 3 साल लगे। 2 से 3 साल लगे। जब हुँ, मेरा 10th कंप्लीट हुआ, जब मैं 11th में आई, हुँ, तब मैंने रियलाइज़ किया कि राखी टीचर हैज़ सेड राइट दैट टाइम। अगर उस टाइम उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बुरा लगा, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी। तो मैंने 10th में बहुत सिंपल बोर्ड था, बहुत ज़्यादा लाइक नॉर्मल सी हाँ, स्कूल एकदम थी नॉर्मल एकदम। हाँ। स्कूल थे 10th में एंड वो स्कूल के बच्चे ने कोई इस तरीके की स्कूल की एंट्रेंस क्वालीफाई की है? नेवर नेवर नहीं एवर किए। नो। और वो स्कूल के कोई टीचर ने भी आपको कहा था ना कि इट इज़ नॉट ईज़ी कि वहाँ पर का यस, एंट्रेंस तुम क्वालीफाई कर नो, पाओ? he said to me कि आरती it's okay that you are giving entrance or the test, but don't fully rely on that school कि वो होगा भी। हाँ। तो आई हैव जस्ट लाइक मैं बस मैंने सर को बोला, मैं सर को कुछ बोली नहीं, आई वॉज जस्ट स्माइलिंग। मैंने हाँ। स्माइल किया एंड आई लीव इट दैट प्लेस। बट यू आर राइटिंग सम डिक्लेरेशंस यस, कि मैं लाइक स्कूल मेरे में अंदर में मेरे एंट्रेंस क्वालीफाई किया है। ऑल दोस थिंग्स आई गेस यू हैव डन। यस, तो मेरे अंदर जानता, मेरा पोटेंशियल कह रहा था कि आरती तुम्हारा निकल जाएगा। बाहर में बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत लोग मोटिवेट करते हैं, तो आई ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि मैं ज़्यादा पॉजिटिव को पकड़ती हूँ।
तो हाँ। ऑल ऑफ सडन तुम पॉजिटिव सराउंडिंग से अट्रैक्ट हाँ। होने लग गए. You got magnetized to the teachers, those who were Yes. positive. Then your tuition teacher was very Yes. positive, as you said. यस एक दीदी थी जिन्होंने मेरा मेरा बहुत हेल्प किया, एंट्रेंस में निकालने में हेल्प किया. इफ़ शी वॉज नॉट देयर इन दैट टाइम, मे बी मैं अपना एंट्रेंस और इंटरव्यू नहीं निकाल पाती. शी हेल्प्ड मी अ लॉट, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव हर इन माई लाइफ. I think she was Sanskriti. यस संस्कृति दी. Sanskriti, thank you so much. यस संस्कृति दीदी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू. हाँ. So you are really like I'm very blessed कि आप उस टाइम थे and आपने मेरा हेल्प किया तो मैं वो स्कूल पहुंच गई. So I always grateful for तो that. तुमने एंट्रेंस के लिए जो एफर्मेशंस हाँ, एंड हाँ, डिक्लेरेशंस लिखा था मैं उसमें बता- स्कूल का नाम भी लिखा था. मैं बताती हूँ, ठीक है. हाँ. तो जब मैंने 10th में आई तो मैं संस्कृति जी से पढ़ रही थी. हाँ. उनसे मैंने पूछा, माँ दीदी मेरे को कॉलेज नहीं जाना है 11th-12th में, हाँ. मेरे को स्कूल जाना है. हाँ. ये मेरे फैमिली में नहीं पता था. लाइक मैं नहीं बताती हूँ कोई भी चीज़, अगर मेरे माइंड में आता है ना तो पहले मैं उनसे पूछती हूँ जो मुझे लगता है कि उसमें कुछ अच्छा गाइडेंस डायरेक्शन मुझे मिले. हाँ. तो मैंने दीदी से बात किया तो दीदी ने मुझे बोला कि तेरे को स्कूल जाना है ना बाबू तुम्हें, तो मैं तुम्हें स्कूल बताती हूँ. 2-3 स्कूल बताया मुझे, राजेंद्र विद्यालय, ओके. सेंट मेरीज एंड SKPS जिसको स्कूल एंड चिन्मया विद्यालय टेलको वाला. वेरी नाइस स्कूल, वेरी लाइक एवरी सब स्कूल बहुत अच्छे थे. तो मैं बोली कि आई वाज टारगेटिंग 2 स्कूल, जिसको एंड सेंट मेरीज. ओके, सो एंट्रेंस. आई एम ग्रेटफुल मेरा बेटा जिसको मैं. हाँ, यस, योर सन इन दैट स्कूल ओनली. तो सेंट मेरीज है तो उसमें सिलेबस रहते हैं कि लाइक जैक बोर्ड में क्या था ना कि सिलेबस उतने नहीं रहते मैथ्स में. तो मैं वो उस एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए मैथ्स का मैंने RD शर्मा का बुक लिया था. बहुत RD शर्मा का सबसे डिफिकल्ट रहता है. डिफिकल्ट. RS अग्रवाल के बाद RD शर्मा आता है. यस, लाइक बोलते हैं ना कि इफ यू वांट टू हैव अ वेरी डेप्थ नॉलेज इन मैथ्स तो गो फॉर दैट बुक RD शर्मा. RD शर्मा करो, आपका मैथ्स का पकड़ बहुत अच्छा हो जाएगा. तो दीदी ने मुझे बताया था RD, लाइक उन्होंने मैथ्स मुझे पसंद था बचपन से. हाँ नहीं बचपन से, लेकिन एंट्रेंस के लिए पसंद करना पड़ा. हाँ नहीं मैथ्स में अच्छे लगते Average. हैं. हाँ ठीक थे, लेकिन हाँ 9 में तो बिल्कुल नहीं. पता नहीं मेरे को ऑड नंबर अजीब लगते हैं. लाइक 6, 8, 10 मेरा मैथ्स बहुत, लाइक 11 में भी ना मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था. लिटरली आई एम सेइंग मैं फेल भी हो गई थी मैथ्स में. बट 12th में लाइक 12th में मैं सेकंड की थर्ड मेरा आया था 74 आउट ऑफ 80. वाओ. मैथ्स में फर्स्ट टर्म में. तो टीचर भी बहुत खुश हुई थी. लाइक 2 बच्चे के बाद में था मेरा 74 आया था. सो मेरे को मैथ्स पसंद नहीं थे, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे को स्कूल जाना है. मेरे को भी भाई आई वांट टू बी सराउंडेड बाय अ गुड पीपल. तो जैक बोर्ड इज बेसिकली अ स्टेट बोर्ड. Yes, जैसे it is महाराष्ट्र big. स्टेट बोर्ड यहाँ हाँ. पर कहते हैं. जैक बोर्ड हो गया झारखंड एकेडमिक काउंसिल. यस, तो झारखंड स्टेट बोर्ड हुआ. हाँ. एंड झारखंड स्टेट बोर्ड से यू वांटेड टू जंप इनटू CBSE CBSE. पैटर्न. ओके. Okay, so you qualified St. Mary entrance exam. हाँ आई वॉज राइटिंग कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया. एंड मेरा नंबर मुझे नहीं पता था, मैं ऐसा लिखी मेरा रोल नंबर और मेरा नाम एकदम फर्स्ट में है, आरती साहू. इतना ये रोल नंबर है. आई डोंट नो द रोल नंबर बिकॉज इट्स बीन 2 years. हाँ. आई फॉरगॉट दैट. हाँ. सो मेरा फर्स्ट में होगा. ठीक है, ऐसे मैंने लिखा and I was imagining that thing Everyday every single day visualization. that time. तो it came true. हाँ. ये हुआ. फर्स्ट रो में नाम था. फर्स्ट रो का लास्ट में मुझे लगता है तुमने फोटो भी मुझे ये भेजी थी आपको ना. मैंने भेजा था. तो फर्स्ट रो का लास्ट में मेरा रोल नंबर था. I went with my brother हाँ. to see कि मेरा निकला कि नहीं निकला. हाँ. When I Saw your went name. there and when I saw my roll number, I was over the moon. Like मैंने जंप किया, इतना खुश हुई मैं. भैया 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 मेरा हो गया. Oh my God. ऐसे मैंने किया. And what was your brother's? Oh, he was like, he was very वो proud. ऐसे of नॉर्मल me. कह रहेगा कि एंट्रेंस दी चलो देख लेते. नहीं नहीं, बहुत खुश हुए. हाँ. नहीं पहले तो यही रहेगा ना दिमाग में हाँ, कि कि एंट्रेंस दी चलो देख होगा लेते. कि नहीं मतलब होगा. वो इतना प्रिटी श्योर नहीं होंगे कि कर लेगी. लेकिन जब मैंने किया ना वो हाँ. खुश. हाँ. Wow, very proud of you. ऐसे he patted me here
and I was happy. I called for Sanskriti Didi हाँ because she was the one हाँ जो मुझे help किया, जो who helped me to get there. हाँ So मैंने फ़ोन किया, दीदी मेरा हो गया, दीदी भी खुश, मैं भी खुश, मज़ा आ गया। फिर घर गई, बहुत अच्छा लगा। फिर ऑफ कोर्स बोलते हैं ना, एक चीज़ खत्म हो तो तुरंत दूसरा आ जाता है। Life No, is all about yes. roller coaster, ups and downs comes. When your one wish came true, you suddenly had a second thing. Like you have to constantly um, Manifesting the basic thing to reach out to your highest goal. yes. तो आपको एकदम नेक्स्ट स्टेप लेना है तुरंत में, ऐसा नहीं कि बैठा नहीं। तो फिर इंटरव्यू तैयारी करना है। अब इंटरव्यू होगा नहीं होगा, वो qualify वही करना है। मेन चीज है। इंटरव्यू इफ यू विल नॉट स्पीक इन कॉन्फिडेंट मैनर देयर, देन टीचर विल थिंक, बिकॉज वो बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है, सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल in Jamshedpur. I was studying there and I have completed my 12th in that school, St. Mary's English High School. So किया वो लाइक लॉयला के बच्चे आते हैं जो जमशेदपुर के सबसे टॉप वन में लॉयला के बच्चे वो स्कूल में आते हैं। मैं तो जैक बोर्ड की थी। आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट अ बिट, बट माई इंट्यूशन सेज कि आरती हो जाएगा, बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन मैंने किया था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब आपका कुछ विश पूरा होता है ना, तो यू आर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट। सो दैट टाइम आई डोंट नो अ सिंगल बिट ऑफ इंग्लिश। अच्छा, you were not good at that. No, English. like I was understanding English, like if you It will was not speak, it was not easy for you to communicate. you know what, I had mugged up English. what question did teacher ask? Mostly usually पूरा question जो रट्टा पूछते मार हैं, के एकदम एकदम पूरा। रट्टा मार के, ये हेल्प मेरे को संस्कृति दी ने किया था। सब एकदम question उन्होंने answers मेरे को पढ़ो पहले। प्रॉपरली लिख दिया था कि ये क्वेश्चन हाँ, पूछा जा सकता है। हाँ कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरती, तो कर लेना। इसी का आंसर लर्न करके जाना हाँ, अच्छे तो से। मैंने किया था, तो फाइनली हो उसमें गया। से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ पूछे थे, हाँ। एंड थोड़ा मोड़ा मैंने बोला, लेकिन होता है ना वो रट्टा मारने वाला समझ में आ जाता कि है रट्टा मार के गई कि है। रट्टा मार के गई है। तो पूछा कौन सा बुक पसंद है, मैंने बहुत अजीब बोला था, माय टेंस वाज नॉट गुड दैट टाइम। हाँ मैंने ये चेतन भगत का पढ़ा था, कुछ अजीब चेतन बोला था, भगत। बहुत अजीब बोला था। हाँ। तो देन सर हैज सेड कि वहाँ पे कि हाँ आरती ठीक है, योर इंटरव्यू वाज गुड, मैं ले लूंगा, लेकिन जैसे उन्होंने देखा ना मेरा पेपर कि ये जैक बोर्ड से है, हाँ। तो उन्होंने लाइक उसी टाइम मेरा एडमिशन हो जाता अगर मैं सीबीएसई या फिर आईसीएसई से होती। तो जैक बोर्ड से थे हम, मैं थी, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं एडमिशन नहीं दूंगा। क्यों? मैं डर गई क्योंकि हाँ स्विच हो रहा है, क्योंकि हाँ, हर एक स्कूल का अपना एक नहीं, प्रेस्टीज बनाकर रखना रहता है कि जैक हमारे पास के जो बच्चे निकले कुछ ऐसा बने कि स्कूल का नाम हो। लाइक तो वैसे गिनती के स्टूडेंट्स को जल्दी लेते नहीं है वो लोग। वो सरकारी स्कूल था। अच्छा, जहाँ से गवर्नमेंट तुमने स्कूल, जैक श्री राम इंग्लिश हाई स्कूल इज अ गवर्नमेंट स्कूल। हाँ। बट वो होता है ना कि कोई स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसका बोर्ड जैक में मोस्टली ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो जो स्कूल का नेम होता है किसी और के हाँ, वो टाई अप होगा वैसा। टाई अप था, तो वो गवर्नमेंट स्कूल था, ठीक है। तो जब वो सर ने देखा मेरा प्रोफाइल कि ये तो जैक बोर्ड से है, सो वो उन्होंने बोला कि अभी मैं नहीं दूंगा आपको एडमिशन, इफ यू विल स्कोर 80+ देन आई विल गिव यू एडमिशन है। अच्छा, एंट्रेंस के बाद भी फिर ऐसा हुआ? इंटरव्यू हुआ ना, इंटरव्यू के बाद भी हाँ, मतलब मैंने इंटरव्यू भी अच्छा किया। हाँ। उन्होंने बोला कि आपका अगर 80+ आएगा परसेंटेज, तब आप किस में 80+? बोर्ड्स 10th के बोर्ड्स में। हाँ, तो अभी मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा। हाँ। तो फिर मैं बोली, मैं थोड़ा आई वाज शॉक्ड कि फिर इतना डर अच्छे से लगे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू किया, जज इतना किया जा रहा लाइक है। 10th का बोर्ड के साथ साथ मैं अलग से एंट्रेंस का पढ़ाई की। हाँ। इट वाज क्वाइट टफ फॉर मी। सो हाउ मच यू स्कोर्ड इन 10th बोर्ड? 85.4। वाओ। सो इतना लाया। उसने 80 बोला था, तुमने उसे ज्यादा लेके आया। नहीं तो फिर मैं डर गई कि मैं बस बोला ना, कुछ लिख के नहीं दिया। उस टाइम होता है ना कि लिख के देते, एक होता है कि हाँ ठीक है हो डॉक्यूमेंटेड है, हाँ कि चलो होना ही है। ये इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रूफ कि हो जाएगा। वर्बल बोला, हो सकता है वो मुड़ भी सकते बात का। And you again started applying law of attraction. नहीं, again I went that school. हाँ। एक मैम के साथ गई थी। हाँ।
मेरे भैया के फ्रेंड थे, वो क्रिश्चियन थे। अब सेंट मेरीज कैथलिक थे, हाँ, हाँ। क्रिश्चियन स्कूल थे। कैथलिक तो स्कूल। उनकी मॉम के साथ मैं गई, तो उनकी मॉम ने बोला कि इसका एंट्रेंस हो गया है, तो इसको एडमिशन मिल जाएगा ना, क्योंकि आपने बोला था कि एडमिशन मिल जाएगा अगर इसका 80+ आएगा। लाइक शी जस्ट वांट टू अश्योर कि इसका मिल जाएगा ना, कि आप हाँ। लोग फिर पीछे तो नहीं हटोगे ना। हम्म। तो ऐसे मैं गई थी, मैंने बोला, उन्होंने बोला, मैं कुछ नहीं बोली थी। तो फिर एक सर आए जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, फॉर्चुनेटली वो सर उसी टाइम आए जैसे मैं ऑफिस के अंदर जा रही थी। तो वो भी आए, उन्होंने बोला अगर आपका 70+ भी आ जाएगा ना तो मैं आपको ले लूंगा। फिर तो मैं तब लगा कि चलो हो जाएगा। हाँ। तो फिर मैं गई वहां से, हटी। फिर मैंने अपना आई वॉज प्रिपेयरिंग माई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत अच्छा गया। तो मेरे लकीली आई गॉट 85.4%। देन आई वेंट आफ्टर 2 to 3 days from the that day when my result got announced। उस दिन मैंने, उसके अगले 2-3 दिन बाद गई मैं स्कूल, एंड मेरे को मिली हो गया एडमिशन। एडमिशन। यस, आई वाज लाइक congratulations आरती, you have अचीव्ड। achieved a very biggest goal in your life। that was my biggest goal। तो फिर मैं अगले दिन गई स्कूल। हाँ, थोड़ा सा फर्स्ट डे होता है ना कि थोड़ा वहां पर भी हुआ रहेगा कि फ्रेंड्स को बनाना, कैसे बहुत फ्रेंड्स को डिफिकल्ट था, सराउंडिंग बनाना, बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि सब अलग अलग जितने भी बच्चे होंगे सारे सीबीएसई आईसीसी सब पैटर्न है, सबके एवरीवन, घर का जो वाइब्स होगा वो थोड़ा ज्यादा लग्जरी या वेल्दी Yes। लाइफस्टाइल के होंगे। एंड फिर उन लोगों के साथ एक तालमेल से बनना, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी, आई वाज इन जमशेदपुर ओनली, आई वाज टॉप 5 में से एक स्कूल आता है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट स्कूल। वो स्कूल में मैं योगा टीचर थी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं मॉर्निंग में योगा की असेंबली लेती थी, तो कुछ ऐसे ना लास्ट के कुछ बच्चे रहते, रो में लास्ट के बच्चे, स्टैंडर्ड 5 के बच्चे थे, तो वो लोग ना मेरा कोई बात ही नहीं सुनते थे, लिटरली। मतलब हम रईस घर के बच्चे, हम नहीं सुनेंगे ऐसे। एंड रईस इन द सेंस छोटा मोटा रईस नहीं थे वो लोग, ऐसे रईस थे कि अकेले बच्चे को लेने के लिए भी ना BMW कार आ रही है, बच्चे का पिक एंड ड्रॉप भी हमारे चॉइस की, बच्चे का पसंद के कार से आना जाना होगा, ऐसा था। तो 2-3 बार ऐसा हुआ एंड आई नोटिस्ड कि ही इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग मी। एंड फिर मैंने, उसकी क्लास टीचर्स रहते थे, क्लास टीचर को कंप्लेंट किया कि मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि बच्चे मेरा सुन नहीं रहे, और उनके वजह से धीरे-धीरे ज़्यादा बच्चों का वैसा एनवायरनमेंट होता जा रहा है। तो टीचर का क्या आंसर था, "टीचर आप उन बच्चों से मत लड़िए, आपको नहीं पता है कि किस घर के बच्चे हैं वो।" ओके। तो आई वाज़ लाइक कि इधर मैं इस स्कूल में टीचर रहूँगी, या तो मैं इस बच्चे को सुधारूँ या तो ये स्कूल छोड़ दूँगी। हाँ, क्योंकि मेरे को 500 बच्चे रिस्पेक्ट करें वो मैटर नहीं कर रहा है। अब मेरे मन में आया कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, दिस इज़ वेरी बैड। बीइंग अ योगा टीचर इट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी कि बच्चों के लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज है, जस्ट एक्सरसाइज, रेज़ योर हैंड्स अप एंड कम डाउन टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ये सब चीज़ें नहीं करनी थी। एंड फिर ये 2 से 3 बार हुआ एंड फिर मैंने मन से सोचा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल रिस्पेक्ट्स मी। एंड उस स्कूल में ना नमस्ते कहने का कल्चर नहीं था। ओके। बीइंग अ कैथलिक स्कूल, वहाँ पे हाँ। नमस्ते कहने का कल्चर नहीं था, बट योगा का ट्रेडिशन इज फ्रॉम भारत। तो मैं हमेशा बच्चों को सिखाती थी कि जैसे तुम मुझसे मिलो तो तुम गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे, यू विल से मी नमस्ते, है ना। और बच्चे ना नमस्ते मजाक में लेने लग गए। ओके। अरे नमस्ते टीचर, नमस्ते टीचर, मतलब होता है ना मस्ती। हम लोग हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अब कुछ नमस्ते जैसा कुछ नया है। हाँ, तो जहाँ मुझे देखे ना चिल्ला के बोले नमस्ते टीचर, नमस्ते टीचर, नमस्ते टीचर, ऐसे करते थे। दे आर मेकिंग फन। बट मुझे अच्छा लगता था कि चलो बोल रहे हैं ना, हाँ। कोई बात नहीं, बोलते बोलते आदत लग जाएगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा इंटरेक्शन सिस्टर के साथ हुआ, प्रिंसिपल के साथ हुआ। तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि इज एवरीथिंग गोइंग गुड। मैं बोली कि नो, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग गुड, आई वांट टू कीप अ कंप्लेंट। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो उस पर कुछ काम नहीं किया जाएगा तो आप मुझे स्कूल से निकाल सकते हैं, बिकॉज आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड कि मैं स्कूल में पढ़ाऊँ जहाँ पर बच्चे मेरे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। एंड आई वॉज अमेज्ड कि प्रिंसिपल हो तो वैसा। वो उठी और बोली कौन से बच्चे, जस्ट मुझे बताइए आप। 2 से 3 बच्चे थे, बच्चे को उसने बुलाया मेरे सामने और उनको सिंपली बोला कल तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम आना। और बच्चे सारे पूरे शान से ओके, आई विल बी देयर विथ माय पेरेंट्स। एट व्हाट टाइम यू वांट माय पेरेंट्स टू रीच आउट टू यू। प्रिंसिपल के साथ बच्चे ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात की। ओह माय गॉड। और प्रिंसिपल को समझ में आ गया कि जब मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं तो तो आपसे राखी क्या टीचर से कैसे करेंगे? बात करोगे। वेरी नेक्स्ट डे उनके पेरेंट्स आए, पेरेंट्स भी पूरे ठाट में थे, ठीक है।
प्रिंसिपल ने सिंपली बोला कि ये राखी टीचर है, इनकी योगा इंस्ट्रक्टर है। और मैं परमानेंट टीचर भी नहीं थी वहाँ पे, ठीक है? ये टीचर का अगर दोबारा वार्निंग आया कि ये बच्चे इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो आपके बच्चे का वो आखिरी दिन होगा और उसके बाद 3 साल आपके बच्चे कोई स्कूल में नहीं जा पाएँगे, ऐसा मैं रिव्यू दूँगी आपके बच्चों का, ठीक है? एंड आई वाज़ सो ग्रेटफुल। मेरी सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी वहाँ पे, पर मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ कि मुझे वो दर्जा मिला, जो हर टीचर को मिलना चाहिए। वो जगह मिला और वो करने का मौका मिला। वैसे ही जब मैं दूसरे स्कूल में गई, इट इज़ अ काइंड ऑफ जुस्को का ही स्कूल है, टाटा स्टील का एक और स्कूल है, जहाँ पर ऐसे बच्चों का ग्रुप पढ़ता है, जो बच्चे ऑर्फनेज में है या उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं सकते। ऐसे बच्चों का ना एक ग्रुप है, ठीक है? ग्रुप इन द सेंस एक एनजीओ है, जो पूरी तरीके से टाटा स्टील चलाता है, ठीक है? वहाँ पर से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे क्लासरूम में बैठे हैं एंड स्टैंडर्ड 9-10th के बच्चे को मुझे योगा सब्जेक्ट पढ़ाना था। तो मैंने देखा वहाँ पे कि हर बच्चे मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। मेरी हाइट इतनी सी, बच्चे जो वहाँ पर है वो 9th-10th के बच्चे का उम्र में कहूँ यूजुअली 14-15 साल होता है, वहाँ पे बच्चे 21-22 साल के थे, 23-24 साल के भी थे। क्योंकि वो लोग ये थे ना ऑर्फनेज थे, ये रोड पे से स्ट्रीट के बच्चों को उठाकर वो लोगों ने पढ़ाकर 9th स्टैंडर्ड तक लेकर आए, ठीक है? तो वो बच्चे ना पीठ पीछे मेरी इतनी मज़ाक उड़ाते थे ना, कोई टीचर्स ना उस क्लासरूम में जाना नहीं पसंद करते थे। जाते थे अपना पढ़ा के भाग जाते थे सिलेबस लेके, बट आई वांटेड टू कनेक्ट विद देम कि क्या बात है इन लोगों में। एंड फिर मैं रोज़ द सीक्रेट बुक ना लेकर जाती थी, डेस्क पे पहले बुक रखती थी और मैं पढ़ाती थी उनका योगा सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट थी, एक बार मैंने एक स्टूडेंट को पनिश किया, बाहर निकलो, वो बाहर ही नहीं निकल रही है। Why? मैं नहीं निकलूँगी बाहर, मुझे नहीं निकलना है। ऐसे, Okay. क्या कर लोगे तुम? ऐसे। तो मैंने कहा कि तुमको निकलना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके 4-5 स्टूडेंट भी और डिस्टर्ब करने लग गए। तो वो कहती है ये 4-5 भी डिस्टर्ब करे, इनको भी निकाल दो। तो मैं समझ गई बाहर निकल के और मज़े करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको निकलना हाँ। चाहते हैं वो बाहर। वो अकेले नहीं निकलना चाहती, 4-5 जन को लेकर जाना चाहती। मैं स्टूडेंट का मेंटालिटी जान चुकी थी, तुमको भी अच्छे से पता होगा। तो फिर मैंने बोला अच्छा, ठीक है, तुम लोग सब जाओ, इंटरेस्ट है ना तुमको बाहर जाना, जाओ। और मैंने भेज दिया और वो बड़े शान से ना मुझे चिढ़ाते हुए बाहर निकली वो, ठीक है? Okay. जा रहे बाहर, क्या ही हमको तो मज़ा आ रहा है पनिशमेंट लेके, ऐसे हाँ। करके। उस समय मुझे लगा ना कि बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। पेरेंट्स करे ना पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेज दे रहे। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि वो बच्ची क्लासरूम में रो रही थी, तो आई वाज़ लाइक व्हाट हैपेंड? तो उसको तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। धीरे-धीरे मैं कुछ ऐसे-ऐसे टॉपिक्स पर बातें करने लगी ना क्लासरूम में, तो बच्चों के साथ मेरी दोस्ती बढ़ने लग गई, Wow. ठीक है? और फिर उसके बाद से उस बात को लेकर अब तक मुझे 4 साल हो गया उस बात को। आज तक वो लड़की मुझसे कनेक्टेड है व्हाट्सएप पर। मेरे व्हाट्सएप की लव ग्रैटिट्यूड की सेशंस वो हर दिन अटेंड करती है। Nice. उसने उसके लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। मतलब उसको फैमिली से बहुत प्रॉब्लम था, वो फैमिली से प्यार करने लगी। Nice. और वो वहाँ के बहुत सारे बच्चे, जब मेरा स्कूल छोड़ा था ना, बच्चे की आँखों में ना आँसू थे, टीचर आप मत जाओ प्लीज़। तो मैं वहाँ पर परमानेंट टीचर नहीं थी और मुझे पता था कि लाइफ का मतलब ही है कि चेंज, हाँ। बदलाव आते रहेंगे, मुझे कभी ना कभी तो जाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का और टीचर का जो रिलेशनशिप था, जो मैंने हमेशा देखा है कि हर स्कूल में टीचर्स का काम रहता है, अच्छा ये तुम्हारा एनुअल सिलेबस है, ये तुमको कंप्लीट कराना है। बच्चे बदमाशी करेंगे तो कंप्लेंट करना है, ज़्यादा हुआ तो उनके पेरेंट्स को बुलाना है। बट मेरा मेथड अलग था, मुझे मेरे बच्चे के साथ पहले फ्रेंडशिप करना था। एंड जब यू केम इनटू माय लाइफ एंड यू वर लाइक कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो मेरा क्या था, सिर्फ इतना याद रखो कि एवरीडे ग्रैटिट्यूड लिखना है। इतना याद रखो कि तुमको जैसे फ्रेंड्स और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, तुम्हारे स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तुम्हारी लाइफ में वैसे ही फ्रेंड्स आएँगे, ये माइंडसेट रखो। तुम्हारे टीचर्स वैसे ही मिलेंगे जो तुम्हारे गोल्स को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसे माइंड में रखो। तुम्हारे पेरेंट्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे चॉइस को, तुम्हारी लाइफ को तुमने जैसा सोचा है वैसा मेरा लाइफ को बनाना है, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स बदलने लग जाए, बदल गए, ऐसे सोचो और ऐसा हो गया है ना, आई गेस ऐसा हुआ है, हाँ, हुआ है, एकदम हुआ है। एकदम हुआ है। Yes. मतलब तुमने सोचा कि मेरे फ्रेंड्स जो है मेरा मज़ाक ना उड़ाए, मैं अगर इंग्लिश सीख रही हूँ और बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो अरे बड़ा अंग्रेज़ी बोलने आ गई भेंजी,
ये कोई ना बोले मुझे। तो ये सारी चीजें यू मैनिफेस्टेड सच Yes. काइंड ऑफ फ्रेंड्स जो तुम्हारे ताल में ताल मिला रहे। यू मैनिफेस्टेड दैट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। फैमिली तो ऑलरेडी तुमको बहुत प्यार करती है, Yes. बट तुमको एजुकेशन सेक्टर में जो बोलते हैं ना, जो सपोर्ट चाहिए था, जो अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली पेरेंट्स से चाहिए थे, वो तुमने मैनिफेस्ट किया पेरेंट्स की तरफ से। तुमको ऐसे टीचर्स चाहिए थे। अरे राखी मैम तो चल गई मुंबई, भाई अब तो टीचर्स फिर भी मुझे मिलने लग रहा है ऐसे, जो मुझे मोटिवेट करे या मुझे वो एजुकेशन दे जो मुझे एक्चुअली चाहिए। वो भी शायद तुमने मैनिफेस्ट किया। और तुम बीइंग देयर इन द जमशेदपुर, विपसना जैसे चीजों के लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया, Accept. तुमने मैनिफेस्ट किया। और अब शायद तुम्हारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है विपसना की फ्रेंड्स का, 5 से 6 Yes. लड़कियों का, Yes. और सारे करियर ओरिएंटेड गर्ल्स है एकदम एकदम। एकदम और सारे के सारे मस्त फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, एकदम और सारे के सारे बहुत अच्छे हाई लेवल बैकग्राउंड से है, Yes. सारे के सारे बहुत पॉजिटिव है, Yes. सारे के सारे को मेडिटेशन करना पसंद है। मतलब तुमने एक ऐसे फ्रेंड्स की ग्रुप मैनिफेस्ट की है जो तुमको नेगेटिव रहने ही नहीं देगी, नहीं रहने देगी, नेवर एवर। है ना। यस ये तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ। तुमने विपसना में जाकर तुमने समझा होगा कि बिना नॉनवेज खाए भी, बिना लहसुन प्याज के रहे भी, तुम सात्विक डाइट भी बहुत टेस्ट के साथ खा सकते खुशी खुशी रही हूँ, लाइक वहाँ पे तो मुझे लगा ही नहीं। हाँ हो। थोड़ा क्या सा रूटीन था विपसना का? रूटीन क्या था? विपसना का रूटीन था कि यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक एट 5 AM। 5 AM। हाँ हम लोगों को 4 AM को उठना हाँ होता था। टीनेजर कोर्स, थोड़ा लाइक सा प्रिविलेज गिवन, प्रिविलेज था टीनेजर कोर्स का। आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज यू टोल्ड मी ना कि 4 बजे उठना पड़ेगा। हाँ, आई वाज लाइक रिमेम्बरिंग दैट थिंग। उसके हिसाब लेकिन से जब आपने पूछा वहाँ पे कि यहाँ का कोर्स डिफरेंट होगा, देन हाँ, अचानक से मुझे क्लिक हुआ कि इसका कोर्स कि जरूर डिफरेंट होगा। हाँ डिफरेंट है। तो क्या था तुम्हारा टाइमिंग सुबह का? 5 बजे सुबह 5 बजे उठना है और ये चलता था पूरा रात का 9 बजे तक, मतलब 6 to 7 hours कंटिन्यूअस। एवरी डे। ओके, मतलब 5 बजे उठे तो डायरेक्ट मेडिटेटिव हॉल में गए, नहीं 5 बजे उठा, 5:30 से 6:30 हुआ। मेडिटेशन हाँ, किए। उसके बाद फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, हाँ मॉर्निंग ब्रेक 6:30 to 7:15। हाँ, एंड देन उसके बाद फिर फ्रेश अप। you have to if you want bathe and rest, हाँ, 7:15 to 8 8 and then 8 to 8:45 meditation फिर से मेडिटेशन। धम्मा हॉल में। फिर 9 o'clock to 10 लाइक खाना था वहाँ को इतना टेस्टी, मतलब मजा आ गया खाने का। लाइक नूडल्स भी खाया ना उधर? सब पास्ता भी चीज खाया खाया, नूडल्स, पास्ता, पाव भाजी, मिसल, वड़ा पाव, चिकन, ये सेवई, एवरीथिंग इतना टेस्टी था ना, मतलब लहसुन प्याज के बिना भी खाना इतने टेस्टी होते हैं। और 6:30 बजे नाश्ता, एकदम फ्रेश, और डिनर एकदम कितने बजे टेस्टी। मिलता था? डिनर हम लोग को मिलता था 6:45 to 7:30 के बीच में। उसके बाद उसके डिस्कोर्स, खत्म। हाँ मैं बताती हूँ ना। गोयनका जी का हाँ डिस्कोर्स सुन होगा। बताती हूँ। हाँ, फिर 8 o'clock से क्या था? 8 to 8:45 था हमारा मेडिटेशन। हाँ फिर 9 से 10 मेडिटेशन, हाँ 10 से 10:20 तक रिफ्रेशमेंट। हाँ उस टाइम आपको बटर मिल्क कुछ मिलता था। हाँ। उसके बाद 10:30 से 11:05 तक डिस्कोर्स होता था, जहाँ पे SN गोयनका, सत्यनारायण गोयनका जी हमें बताते थे हाँ, धर्म के बारे में। हाँ तो फिर 11:15 से 11:45 तक फिर मेडिटेशन होता था। 11:45 से 12:35 लंच, 12:35 से 1:45 रेस्ट करने मिलता था। ऑफ कोर्स हम लोग सुबह सुबह उठते थे, हम लोग थक जाते थे, वो 1 घंटा आप लोग सो जाओ करके। तो फिर 1:45 से 2:15 फिर अगेन होता था। फिर Meditation। हाँ 2:30 से 3:15 फिर Like, मेडिटेशन। फिर 5-5 मिनट का हम लोग को ब्रेक मिलता था। फिर हाँ। 3:30 to 4:30 तक फिर मेडिटेशन होता था। हाँ फिर 4:30 को फिर हम लोग को मिलता था स्नैक्स। हाँ उस टाइम आपको टी, मिल्क, वहाँ के दूध Fruits, थे। ओह माय tasty। गॉड, मिल्क। आई हैव फॉल इन लव विद द फूड प्रोवाइडेड बाय इगतपुरी ड्यूरिंग ये सब जगह मैंने भी किया था, पुणे में स्वारगेट से मैंने किया था, बिकॉज आई हैव बीन एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम देयर ना। एंड लकीली मेरे जो आचार्य थे और आरती के आचार्य सेम थे। मैंने पुणे Same। स्वारगेट में किया विपसना, एंड यू डिड इन इगतपुरी। हम लोग दोनों के साधना ये क्या नाम था हमारे? मिस सुनंदा राठी जी हमारे हाँ। गुरु थे। जब इसने बताया कि मेरे टीचर्स का फोटो दिखा, अरे ये तो मेरी भी टीचर थी, हाँ, सुनंदा राठी same। करके। अरे वाह, दिस इज तो मैनिफेस्टेशन। यस
तो हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स के भी टाइम दिए जाते थे 40 लाइक जो भी सिखाया जाता था ना तो राठी मैम एक एक ग्रुप करके बुलाती थी हम लोग हाँ को। वो बुलाते फिर हाँ, पूछते फिर क्या पूछते समझ थे कि में आया, समझ में आया, किसी समाधि को में रहना सीख रहे हैं हाँ कि नहीं, प्रज्ञा न- शीतलता सीख रहे हैं कि हाँ नहीं। समझ नहीं आया तो फिर वो समझाते थे एकदम काम, मतलब वहाँ की मैम सेविका बोलते थे, हम्म। ये बहुत कम लाइक वो आपको 24/7 आपको सर्विसेज देते थे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है गो टू सेविका। तो इतने दिन फैमिली के बिना रहा रहा गया? हाँ रहा गया, पहले तो लग रहा था बहुत याद आएगी ना। याद आएगी बट याद आई, बट वो जो 2-3 बोलते थे दिन के ना बाद फिर गोयनका जी ने कि यहाँ पे आप अटैचमेंट, सीखने आए हो, तपस्या करने आए हो, तपस्या करने आए हो, आप एंजॉय करने रोओगे, नहीं आए हो। बोलते हैं ना जो आप बोओगे वो आपको मिलेगा। हाँ, अगर आप जैसा बीज रोओगे, बोओगे। हाँ अभी आप रोओगे तो बाद में भी बहुत रोओगे, इतना खतरनाक। हाँ। मतलब वो तो ऐसा बोलते थे ना कि एकदम छुड़ा देते थे। तो फिर मैं नहीं रोई, फर्स्ट टाइम थोड़ा बुरा लगा था और फिर फर्स्ट 2 शुरू-शुरू में डेज। इतने 7-7 घंटे का मेडिटेशन, मतलब बैक पेन वो सब हुआ होगा? इस लड़की जब घर में आधा घंटा नहीं बैठ पाती थी वहां पे 8 घंटा करना पड़ता था, तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी फर्स्ट 2 to 3 डेज। और अधिताना कैसा रहा? अधिक ताना हम लोग को 3rd डे से करवाया गया हमारे लिए विपस्सना। 4th डे से था। हम्म तो कैसा आपको रहा था वो? वही आपको लाइक फर्स्ट 3 days all about is नो all about मूवमेंट फॉर 1 आवर। no movement and you just have to observe the breathe, your breathe। सांस आना-पाना, आ रही है, सांस जा आना-पाना, रही है, आना पाना, जैसा है तैसा है। बस उतना ही देखना है। कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना है, कुछ अगर माइंड में आ रहा है तो उसको इग्नोर करना है, बट कैसे होगा, नहीं होता मैं होगा। तो न्यू थी। और मेरे तो बहुत चलता है दिमाग में कुछ। चल ही रहा था, मतलब 2 से ढाई, तो मतलब अधिताना पहले दिन तो नहीं हो पाया होगा। पहला दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन नहीं हुआ, तीसरा दिन भी नहीं हुआ, इतना मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट था। हाँ उसके बाद मतलब कि जैसे 7 घंटा करते थे ना हम्म। उसमें 1 घंटा होता था, 1 घंटा सही only से हो पाता हो। सही से हो पाता था, मतलब इतना दिक्कत नी था। में पेन हुआ? बहुत अधिताना पेन में हुआ, बहुत 1 पेन। घंटा, कोई भी एक ऐसा दिन था जिसमें 1 घंटे का जो हमारा अधिताना रहता है, जिसमें नो मूवमेंट जोन में यू वर देयर? एक बार भी 4th ऐसा? डे आई गेस सुबह मैं 5 to 6:30 एकदम बना के अब नहीं उठूंगी। उस दिन मेरे को बहुत मच्छर काटे थे, हाँ? पैर में हाथ में बहुत, क्योंकि उस टाइम फैन बंद रहता था धम्मा हॉल, हाँ, बिकॉज वो पूरा इट इज सराउंडेड बाय नेचर नो, नेचर, तो हाँ। मच्छर आएंगे, तो मच्छर काट रहा था बहुत बहुत ज्यादा, बट हुँ, आई वाज कि आरती करना है तो करना है, तो मतलब वो बर्दाश्त कर लिए? बर्दाश्त किया मैंने, 4th डे बर्दाश्त किया कर लिया? किया। इट वाज अ लाइक जब होता था ना प्राउड ऑफ यू आरती, प्राउड ऑफ यू, जब नहीं होता था ना व्हाट आई डू ना, अफर्मेशंस डाल देती थी मैं अपने क्वेश्चन में हाँ। कि रूम 16 नंबर क्वेश्चन इज वेरी प्योर। वाओ! हाँ क्या मैं अफर्मेशन है, जाती थी वहां बहुत पे पावरफुल है। वैसी मेडिटेशन पोज में एकदम ध्यान आ जाता था, कनेक्शन फील ऐसे होता एकदम था। कनेक्शन फील हो जाता था, एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी, एकदम करने लगती थी, वैसा हुआ, किया, एफर्मेशन डाला, होता था, कभी कभी नहीं होता था, तो उसमें मैं लाइक मैं सैड नहीं होती थी। हाँ, हो सकता है इट इज़ बोलते ना ओके। मिस्टेक से आप दिस इज़ जस्ट सीखते द हैं, बिगिनिंग। दिस इज जस्ट द बिगनिंग, नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेट्स गिव इट अ ट्राई, हाँ। इससे अच्छा करेंगे, ये नहीं कि उसको लेकर के दिन भर पूरा स्पॉइल कर दिया, वो मैं नहीं करती मुझे थी। ऐसा लगता है कि हर पेरेंट्स और हर बच्चे जैसे वेकेशन का इंतज़ार करते हैं कि चलो कहीं घूम आते हैं। मुझे लगता है कि एवरी ईयर 1 महीने का तो लगभग गैप रहता ही है वेकेशन का। तो उसमें से 10 दिन बच्चों को विपस्सना भेजना चाहिए। जाना चाहिए सीरियसली, माय और उसमें तो कोई चार्जेस भी नहीं है। इट इज़ कोई फ्री। इट इज फ्री, इफ यू वांट टू गिव तो आप डोनेशन दो, डोनेशन दो। और इस इंटेंशन से कभी मत दो कि आप वहां रहे, आपको रूम मिला, आपको हम किसी सिंगल और रूम, के लिए डोनेशन दे रहे हैं। हाँ और आपको हमारे लिए किसी और ने डोनेट किया हुआ है। हाँ आपको वहाँ इतना टेस्टी खाना मिल रहा है, इसके लिए तो कोई कभी मत लालच। दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मन से दो, जितना भी दो उसका कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ तो की व्हाट डू यू थिंक कि विपस्सना आगे यू वांट टू डू? ऑफ कोर्स मैं एंड करूंगी। व्हाट डू यू थिंक जितने भी जन विपस्सना में जाते हैं, सभी लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं? नहीं, एवरीवन यू आर आई हैव कंप्लीटली राइट। दिस इज इवन माय एक्सपीरियंस। जब मैं विपस्सना गई थी, तो जो लास्ट डे रहता है, सेकंड लास्ट डे रहता है, जब हमें मोबाइल फ़ोन्स मिलता है, मिलता है। तो हम लोग सब बहुत खुश। और फिर मुझे पता चला एक लड़की है वहाँ पे, वो 7वें बार आई है ओ वाओ, विपस्सना करके। तो मुझे ऐसा लगा 7वें बार मतलब भाई इसकी तो अलाइनमेंट, इंट्यूशन पावर, उसको तो सारे चक्रा बैलेंस हो गए रहेंगे, है ना? तो आई वाज जस्ट वांटेड टू गो नेक्स्ट टू हर एंड आई वांटेड टू नो कि मैंने फर्स्ट टाइम में जो एक्सपीरियंस किया
उसने 7 बार में क्या एक्सपीरियंस किया रहेगा। तो जब मैं उसके पास गई ना, तो जैसे ही उसका खत्म हुआ विपस्सना, वो सारे फिर ये क्या कर रही है, ये वो। तो आई वाज़ लाइक कि आई थिंक स्पिरिचुअलिटी जो है ना, कुछ इंसान स्पिरिचुअल रास्ता चुनते हैं और कुछ स्पिरिचुअल रास्ता इंसान को चुनता है कि Yes. ये मेरे पास आना चाहिए। तो मुझे लगता है देयर इज़ अ डिफरेंस। एंड हम बहुत सारे लोगों को ऐसे यूट्यूब में देखते हैं कि वो लोग ध्यान कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। बट एक्चुअली कोई इंसान अगर 10 साल से भी कर रहा है ना, डज़न्ट मीन्स कि उसको बहुत तजुर्बा हो गया है। उसने उसको किस तरीके से किया है और उसके साथ उसने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में डाला है कि नहीं, तभी उसके अंदर वो बदलाव आता है। जैसे जब मैं गई, फॉर मी सिटिंग फॉर 15 टू 20 मिनट्स वाज़ मोर देन इनफ। बट मैंने, हम लोगों का तो 10 आवर्स का रहता है, बट आई डिड इट। एंड उसके बाद ही मुझे ऐसा लगा मेरे ना हर स्टूडेंट, मेरे हर बच्चे मेडिटेशन करने चाहिए। एंड घर पे बैठ के तो मेडिटेशन होने से रहा होता नहीं है। नहीं होगा। तो मुझे लगता है एज़ अ स्कूल स्टूडेंट हर एक बच्चे को जैसे 9 साल के बाद से मेडिटेशन के लिए बुलाते हैं विपस्सना में, डालना चाहिए। नहीं समझ में आएगा ना, हमें जो समझ आता है वो मेडिटेशन कराना चाहिए। और मुझे तो लगता है ना कि हम लोगों को, इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा बताते हैं, पूरा जर्नी लाइफ की खत्म हो गई, अब आप ध्यान करना शुरू करो। बट मुझे लगता हाँ, है दिस इज़ रॉन्ग। this is wrong. हमें शुरू से ही सब चीज़ करना करना चाहिए। ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे पास जब कुछ काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, जिनके बच्चे बड़े हो गए, उनके जब पेरेंट्स आते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं ये ज्ञान अगर मेरे पास पहले होता ना, तो मेरी लाइफ कुछ और होती। और ये ज्ञान मैं अभी से अपने बच्चे को देना शुरू करूँगी। तो एज़ पर मी आई थिंक कि हर एक पेरेंट्स जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो जब वो उनको अपने बच्चे को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए सिखाना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में था कहीं मेरे बच्चे कोई और अलग चीज़ या गलत चीज़ ना मैनिफेस्ट करने के लिए लिस्ट्स बनाने लग जाए। क्योंकि टीनेजर्स में रहता ही है, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिल जाए जो घुमाने हाँ। लेकर चल जाए, या मुझे पेरेंट्स से फ्रीडम मिल जाए। ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशंस की लिस्ट में आ जाती। बट दे शुड हैव अ परफेक्ट गाइड जो उनको स्टेप बाय स्टेप बताए कि मैनिफेस्टेशन की लिस्ट तुम्हारी क्या होनी चाहिए। अभी जैसे रिसेंट जब हम विजन बोर्ड बना रहे थे, तो कुछ लोगों ने अपनी विजन बोर्ड जब मुझे शेयर की, ये मेरी विजन बोर्ड है, सही है ना? तो उसमें लिखा था सक्सेसफुल लड़की बन गई हूँ, मेरे पास ये बैग है, मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये घर है और मैं बहुत शांति से बैठी हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? तो फिर जब मैंने विजन बोर्ड का सेशन लिया, तो मैंने उसमें सबको एक्सप्लेन किया। विजन बोर्ड में आपको पहले एक अलग पर्सनैलिटी बनना है, वो आपकी विजन बोर्ड में होना चाहिए। लाइक मुझे योगा पसंद नहीं है, पर मेरे लिए योगा बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए क्या, सबको ज़रूरी है। मैं योगा कर रही हूँ, वो विज़न बोर्ड में डाल दो। मैं मेंटल हीलिंग के लिए क्या कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए क्या चल कर रही हूँ, मैं इमोशनल हीलिंग के लिए क्या कर रही हूँ। मैं अगर मेरे पास जो चीज़ है, क्या मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि नहीं? मेरे को, क्योंकि मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड तो रामबाण उपाय है कोई भी चीज़ लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए। ग्रैटिट्यूड रामबाण उपाय है, प्लीज़ वापस सुन लो और उसको एवरीडे करो। नहीं समझ में आता है, आई हैव माय ओन व्हाट्सएप फ्री ग्रुप जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं वीक में 4 टू 5 क्लास फ्री देती हूँ, जिसमें सिर्फ लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कैसे अप्लाई करना है वो मैं सिखाती हूँ। उसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं और कोई ट्रैप करके मैं नहीं सिखाती, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो विज़न बोर्ड में कभी भी पिंटरेस्ट में गए और विज़न बोर्ड फॉर 2026 फॉर वुमेन ऐसे डाल के ना फ़ोटो निकाल के मत लाओ। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर विज़न, व्हाई इट इज़ योर विज़न, व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर पैशन, व्हाट इज़ योर एम, व्हाट वाज़ योर प्रोग्रामिंग एंड इन व्हिच प्रोग्रामिंग यू वांट टू मूव ऑन। तो उसके हिसाब से हमें विज़न बोर्ड बनाना चाहिए। लाइक आरती का मैं बताऊँ कि उसके विज़न बोर्ड में मेरा सबसे पहला टारगेट था कि वो शांत हो जाए, बिकॉज़ वो बहुत एग्रेसिव हो जाती थी या उसे पेशेंस की कमी थी, उसको एंगर आ जाता था, ये सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों का पहला अफ़र्मेशंस वही था, आई एम काम, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम सॉफ्ट स्पोकन, आई एम पोलाइट, आई एम ग्रेटफुल। मेरे पास जो भी चीज़ है मैं उसके लिए ग्रेटफुल, क्योंकि एक ग्रेटफुल पर्सन में पेशेंस ज़्यादा रहता है। सो अभी आरती साहू से हम कुछ येस और नो में क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं कि उसका जवाब क्या आता है, ठीक है? और ये क्वेश्चंस जो येस और नो में होंगे सिर्फ बच्चों के लिए होंगे, कि इस उम्र के बच्चों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ठीक है? आरती, हाउ ओल्ड आर यू? 19, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब से आया लाइफ में? 14 अप्लाई कब से किया? उस टाइम से स्टार्ट किया। 14 की एज से। हाँ, तो एफर्मेशंस रोज करते हो? हाँ, 14 के थे तब से? हाँ, अभी भी करते हो? हाँ, आज भी किया? यस, कल भी किया था? हाँ, थक जाते हो तब भी करते हो? तब भी करती हूँ। ओके, नींद आता था तब भी करते हो? हाँ, बहुत बिजी लाइफ रहता तो भी? हाँ, कोई शादी पार्टी में जाते हो तब भी? यस,
ओके, मींस एफर्मेशंस इज योर लैंग्वेज नाउ, Yes. जैसे मैं मानती हूँ. Yes. ओके, डू यू राइट डिक्लेरेशंस? Yes. कब लिखते हो? कोई भी चीज नया मैनिफेस्ट करना है तब लिखते हो? तब लिखते हो. मतलब एंट्रेंस के लिए भी लिखा था, Yes. मुंबई आने के लिए भी लिखा था, Yes. विपासना के लिए भी लिखा था, Yes. इस पॉडकास्ट के लिए भी लिखा था. Yes. दिखा दूंगी आपको पिक में. हर बच्चे को डिक्लेरेशंस लिखना चाहिए. Yes. मतलब एफर्मेशंस Yes. सिर्फ बच्चे एफर्मेशंस बोलेंगे तो मैनिफेस्ट हो सकता है कि पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए. पेरेंट्स को तो बहुत जरूरी है बोलना और चाहिए. तुम्हारे पेरेंट्स ने तो नहीं बोला, इसलिए तुमने डबल बार बोला क्या? हाँ. अच्छा, मतलब तुम्हारा मेहनत ज्यादा किया तुमने. हाँ. ओके, तो डू यू डू होपोनोपोनो प्रेयर आल्सो? Yes. रोज? Yes. रोज? रोज. क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग रोज जरूरी है. हाँ. रोज दिमाग गंदा हो जाता है. हाँ. जैसे घर में रोज डस्ट लगता है वैसे दिमाग में भी लगता है. हाँ. रोज क्लीनिंग की जरूरत है. Yes. ओके, ये रोज जरूरी है. बहुत जरूरी. और जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत तब ज्यादा तो और होपोनोपोनो करना करो. चाहिए. बहुत ज्यादा कर जरूरी. दो. हाँ. मेडिटेशन कब से स्टार्ट किया? लॉकडाउन से ना? लॉकडाउन से स्टार्ट किया बट अब मेरे को कंसिस्टेंसी आई है. ओके, मेडिटेशन करना डिफिकल्ट था? बहुत. कितना डिफिकल्ट है? वेरी वेरी डिफिकल्ट. सब लोग कर सकते हैं? नहीं जल्दी कर कर सकते हैं? सकते हैं बट उनको एक बहुत पेशेंस की जरूरत है. पेशेंस चाहिए बिकॉज मेडिटेशन इज ऑल अबाउट पेशेंस. आपको एकदम बैठना पड़ेगा मुद्रा के साथ. थोड़ा हिले मतलब हिलना तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग नजरें हटी तो दुर्घटना घटी हटी. वैसा. लाइक आपका माइंड हमेशा बोलेगा आरती खोल. पैर खोल, दर्द हो रहा है. एकदम. जब मैं विपස්සना कर रही थी ना हाँ, मेरे हर ऑर्गन बोल रहे थे खोलो खोलो खोलो. बट अनलॉक करो पैर को. गोयनका जी ने बोला तुम्हें अपने मन का मालिक बनना है. मन को अपना मालिक बनने मन दो. ये हाथ पैर तुम्हारे वैसे काम के से वैसे ही चलता रहेगा. है. नहीं तुम चलाते हो. तुमको हाथ वो तुमको उठाना नहीं तुम चलाता उठाए. है. तुम पैर उठाना तुम उठा रहे हो. हाँ. बट ये मन तुमको चला रहा है. हम्म. लेकिन अब तुमको चलाना है. यू Wow. डोंट लेट योर माइंड इन्फ्लुएंस यू. Like your heart is saying कि भाई मेरे को गुलाब का फूल चाहिए. हाँ. But for you the book is very much important. yes. Then you will say नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए भाई, मेरे को बुक Yes. किताबें चाहिए. मतलब Okay. मुझे अपने मन का मालिक बनना है. मन को मुझे नहीं करना. मन मेरे को ये बोल रहा था मेरे को तो ये उसका करना सुनना है. नहीं है. नहीं सुनना है. यानी वो कि हम हमें- लोगों को ऐसे बोलते हैं, बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि लाइफ में जो भी करो जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारा मन कहता है, लेकिन हमें पहले अपने मन को प्रोग्राम करने की जरूरत है. क्योंकि हमारा मन वही कहता है जैसे हमारी प्रोग्रामिंग है. मन है कभी ना? तो अच्छा कहता ही नहीं है ना. मन हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है. ये मैं Correct. सीख गई हूँ. मन हमारे वश में नहीं कभी रहता आपको नहीं बोलेगा कि अच्छा करो आरती. है. जो भी नेगेटिव चीज है, जिसमें वही डर है, attract जिसमें करेगा. फियर है, जिसमें अट्रैक्शन है, जिसमें वही डिस्ट्रैक्शन है, अट्रैक्ट वही करेगा चीजों बार में बार. ज्यादा आरती admin वो involve लाइफ होता है. अच्छी है उधर चलो. बट Okay. अगर आपको नहीं करना है ऑफ कोर्स वो अच्छी नहीं है. मतलब लेकिन उसको आपको हराना है. उसको हराना है. उसको तुमको That is called as सप्रेस vipassana. करना है. अपने आप को डोमिनेट करना है. Okay, that is called as Yes. vipassana. Okay, so what do you think? Every day you're going to practice vipassana now. Yes, now I'm going to practice vipassana. Do you read gratitude 10 points every day? Yes, Every day. every day. And do you read books? You know what? मतलब स्कूल की बुक्स के साथ साथ हाँ. you read fictional or the motivational books Yes. also. कौन से ऐसे फेमस बुक्स तुमने पढ़े होंगे? Okay, I have read 3 books. The Power of Your Subconscious Mind. ये तो मुझे लगता है लॉकडाउन पीरियड में पढ़ा होगा. Yes, The Okay. Secret. And the most like beautiful book I have ever read. बहुत अच्छा book है. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. I would recommend everyone कि पढ़ो उसको. Okay. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं पसंद आया छोड़ देना. नहीं, complete that book. मतलब हर एक स्कूल के बच्चे को स्कूली किताबों के अलावा भी ऐसे किताबें पढ़ने चाहिए. पढ़नी तो उनके चाहिए. घर की एक लाइब्रेरी जहाँ पे बुक शेल्फ है, यहाँ पर ये किताबें होनी चाहिए. हाँ. Okay. Have you created your vision board? Yes. You have your vision board, you have your vision diary also. Yes. Since the age of? Since the age of 16. तो विजन बोर्ड की जो प्रैक्टिसेस होती है वो भी तुम करते हो. Yes. ऐसा कभी हुआ है कि पीपल हैव स्टार्टेड जजिंग यू कि ये क्या एफर्मेशंस बोल रही है, ये क्या मेडिटेशन कर रही है, ये क्या I हीलिंग कर रही है? make it very private because हाँ, I don't want to. पीपल जज करेंगे और हाँ. डिमोटिवेट हो जाए हम. नहीं, डिमोटिवेट का तो सवाल ही नहीं उठता. हो ही नहीं सकते. मैं उसको भाव ही नहीं देती हूँ. बोलने दो उसको. मैं अपने माइंड, मुझे मेरा इंट्यूशन क्या कहता है, मैं अपने बातों को डोमिनेट रखती हूँ देन अदर. ओके, मुझे ग्रेट. खुद को खुश रखना है. लोग बहुत है जो आपको नीचा दिखाएंगे बट उसमें आप कैसे अपने आप को ऊपर रख रहे एंड हो. आई डू रिमेम्बर व्हेन यू वर इन स्टैंडर्ड 8th और 9th
think you wanted to study something from mobile, like Hmm. live classes, online classes लेना था, and तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल आएगा तो वो लोग गलत लाइन में जाएंगे, और एक्चुअली जाते हैं। 90% तो ऐसे ही होता आ रहा है। मेरे पास पेरेंट्स की ऐसी कंप्लेंट्स आते हैं कि मैम मुझे कुछ एफर्मेशंस ऐसा बताइए कि मेरा बच्चा मोबाइल चलाना बंद कर दे, हाँ ऐसा। बट आई रिमेम्बर कि तुमने मोबाइल मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, एंड मुझे इतना भी याद है कि तुमने मोबाइल का कभी दुरुपयोग नहीं किया है। मतलब उसका जो एडवांटेजेस है तुमने उसका पूरा एडवांटेजेस उठाया है ना। एंड देन यू हैव मैनिफेस्टेड स्कूटी ऑल्सो। यस एंड देन आई रिमेम्बर कि स्टैंडर्ड 9th से या 8th से तुम अपने ट्यूशन की फीस, हायर अच्छी ट्यूशंस पढ़ सको, उसके लिए फीस जमा करने के लिए तुम खुद ट्यूशंस भी पढ़ाने लगी थी। हाँ, मैं अपना 8-9 तक मैं अपने से पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी मैं अपने उसी मैनेज की अर्निंग से अपनी लाइक पढ़ाई माय करते थे। मदर नो, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाया है कि खुद पैसा कमाओ। ऑफ कोर्स जब नहीं रहता था तो फैमिली देते थे, हाँ, बट उन्होंने स्ट्रगल करना सिखाया है। बिकॉज़ अभी मैंने आई हैव कंप्लीटेड माय 12 नाउ। मतलब चद्दर छोटा है तो पैर हाँ, छोटा ऐसा मत नहीं, फैलाओ, नहीं भाई, फैला दो। मैं चादर को बड़ा बनाऊंगी, उसमें कोई कमाऊंगी। रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ। जो पहले के जो रहते ना मिथ प्रोग्रामिंग, कि हाँ, चादर छोटा, उतना नहीं, हम चादर को बड़ा करेंगे, हम उतना ही पैर ट्रिपल फैलाओ बेड जितना बड़ा चद्दर है। हाँ नहीं, हमको बड़े चद्दर लेने तुमको कमाने होंगे। हाँ हम 4th बेड का चादर मतलब बनाएंगे। एज पर यू या एज पर मी ऑल्सो, मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि जो इंसान जिसको करना रहता है उसके पास बहाने नहीं होते, हाँ, और जिसको उसके पास ऐसे ना मिथ वाले कोट्स नहीं रहते, नहीं रहते हैं। है ना, कि पेड़ पैसे पे नहीं उगता, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। ये वही लोग बोलते हैं जिनको कुछ करना कुछ नहीं नहीं रहता है, करना है। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है ना, उनके पास बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट्स रहते हैं। और हमेशा अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है ना, दूर रहो भाई। एक मस्त वाला एफर्मेशन है जो मैं हमेशा सबको रिकमेंड करती हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने हाँ। आरती को कहा, और ये मेरे सभी जगह पर ये एफर्मेशंस मैंने लिखा है कि आई एम सो मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम सराउंडेड विद पॉजिटिव, पीसफुल, हैप्पी, रिच, काइंड एंड सक्सेसफुल पीपल। एंड ये मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एंड इसके बाद से ऐसा हुआ कि मेरे लाइफ का तो रोलर कोस्टर ऐसा था कि अभी टूट ही जाएगा रोलर कोस्टर, तो वापस ऊपर आ जाती थी मैं। आई यूज्ड टू गो डाउन, एंड सी लाइफ को हमेशा रोलर कोस्टर की तरह इसीलिए लेना चाहिए, मैं मानती हूँ, क्योंकि जब हम एक्चुअली रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो जब हम नीचे जाते हैं तब भी हम शोर मचाते हैं, मजा आ रहा है। जब हम ऊपर जाते हैं तब भी हम शोर मचाते हैं, मजा, अंदर से डर लगता रहता है, फिर भी वी एंजॉय दैट। सो दैट इज अ लाइफ जो नीचे गिरेगा ऊपर आएगा, नीचे गिरेगा ऊपर आएगा, एंड वी जस्ट नीड टू एंजॉय द मोमेंट। मतलब इंस्टेड ऑफ दुखी होना, हम लोग उसमें से कुछ अच्छा लेकर आ सकते हैं। विपस्सना ने हमें सिखाया कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, 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 Yes, चेंजिंग, it keeps चेंजिंग, on changing. है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इवन आई एम चेंजिंग एवरी सिंगल मोमेंट। 1 मिनट पहले जो राखी थी, अभी वो राखी नहीं है। नहीं है। आई विल एक्सप्लेन हाउ। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, एज पर विपस्सना एस एन गोयनका जी बोलते हैं, हमारा जो शरीर है ना, शरीर नहीं बुलबुला है, बबल्स की तरफ फट रहे, नए बन रहे, फट रहे, नए बन रहे, उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, उत्पन्न हो रहे, नष्ट जैसे हो रहे। हमारे सेल्स, मिलियंस हाँ, ऑफ सेल्स। सेल से हमारा ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। तो हमारा जो सेल्स है वो मरता जा रहा है, बार-बार dead फिर होता है, जैसा मर फिर रहा है बनता उसी के है। जैसा दूसरा बन रहा है। हाँ। तो जब हम मरते हैं, हमारा कोई सेल मरता है, जैसे बोलते हैं ना, ये आदमी मर गया, वो दूसरी जन्म जब लेगा तो पुरानी प्रोग्रामिंग को भी लेके जाएगा, कर्मास को भी लेकर जाएगा। तो वैसे हमारे जो सेल्स रहते हैं, जैसे वो डैमेज होकर दूसरे सेल्स जब पैदा करता है, तो वो उसी सेल्स के भाव लेकर आता है, दुख सुख उसके भाव, उसके कर्म लेकर आता है। तो मेरा जो शरीर है, अभी 1 सेकंड या 1 मिनट पहले मैं जो सोच रही थी उसके हिसाब से जो सेल बने और जो डैमेज हुए, दूसरा सेल भी वैसे ही बना। तो यानी कि अगर कोई इंसान बीमार है, अगर वो सोच रहा है अरे मैं बीमार हूँ, तो वो उसका बीमार ही सेल भी ये रहेगा। सुन रहा है, क्योंकि एवरी सेल में जान होता है। वो कह रहा है मैं बीमार हूँ, तो उसके बाद जो दूसरा सेल पैदा होगा बोलेगा अरे मैं तो बहुत बीमार हूँ। उसके बाद जो सेल उसको मरने का तीसरा पैदा होगा बोलेगा अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ, और फिर वो इंसान आईसीयू में चला जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जब आप यू कैन हील योर लाइफ, लूजी है के द्वारा जो किताब लिखा गया है, जब आप उस बुक को पढ़ोगे ना, यू विल सी कि कैंसर पेशेंट आईसीयू से बाहर आए, भाई डॉक्टर ने बोला ये नहीं बचेगा। जस्ट उसने अपने एक एक सेल को एफर्मेशंस दिया He has कि applied भाई law of मैं ठीक हो attraction. सकती हूँ। तो हाँ। व्हाई नॉट हर एक बच्चा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करे। हर एक बच्चा बोले माय पेरेंट्स सपोर्ट्स मी, माय पेरेंट्स लव मी, आई लव माय पेरेंट्स,
आई एम ग्रेटफुल। और मुझे लगता है हर एक स्कूल के बच्चे को ना लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हर सबसे ज्यादा नेगेटिव ना बच्चे ही रहते हैं। बहुत मेरे मम्मी पापा मुझे ये देते, उसकी मम्मी पापा उसको वो देते, मेरे मम्मी पापा फटपटी पे लेने आ रहे, उसके मम्मी पापा कार पे लेके आ रहे। तो व्हेन यू विल बी एट ग्रैटिट्यूड कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई इवन डोंट वॉक टू गो टू रीच आउट माई स्कूल, वो ग्रैटिट्यूड जब बच्चे प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना, बच्चे की लाइफ अपने आप चेंज होगी। और पेरेंट्स के मन में ना यही दुख ही मन में रहते हैं, हाय मैं अपने बच्चे को वो चीज़ नहीं दे पा रही हूँ जो उनके बच्चों को मिल रहा है। तो धीरे-धीरे वो लोग भी क्या लैकिंग की चीज़ों में है, तो लैकिंग की चीज़ों में रहते-रहते ना उनकी लाइफ में भी और प्रॉब्लम होते हैं, जो अपने बच्चे को अच्छा लाइफ देना भी चाहते हैं ना, तो अच्छा लाइफ नहीं दे पाते। तो लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड पेरेंट्स के साथ-साथ ना बच्चों को भी अप्लाई करना चाहिए। बट हियर इफ यू पीपल आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि बच्चे के पास अगर अचानक से आप ऐसा कुछ लेकर आओगे, अरे बाबू थैंक यू बोलो, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास कपड़े, तुम्हारे पास बाल है। ये तो पेरेंट्स एक्चुअली बोलते तुम्हारे पास जो है वो दूसरों के पास नहीं है, बहुत सारे जन के पास नहीं, तुम्हारे लिए कितना मेहनत करके पापा लेकर आते हैं पैसे, जिससे हम ये सब चीज़ तुमको दे पा रहे हैं। ये लेक्चर हमारे पेरेंट्स ने भी हमें हमें दिया था जब हम छोटे थे, बट हमने उसमें उसको हल्के में लिया। जैसे जब मेरी मम्मी बोलती थी ये सारी चीज़ें, तो अरे मम्मी का फ़िल्मी ज्ञान चालू हो गया, भागो यहाँ से। ऐसे हम भी थे। बट अभी ऐसा हो गया ना कि अभी इतनी सारी अच्छी किताबें आ गई है, इतने सारे लाइफ कोचेस आ गए हैं ना, जो बच्चों को भी अच्छी प्रोग्रामिंग दे सकते हैं, एवरीडे उसको प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पेरेंट एंड टीचर्स टू कि बच्चों के लाइफ में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स लाइए, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड की टीचिंग्स लाइए। आप उनको स्कूल में जो सिलेबस डाले हैं कि भाई ब्रिटिश ने ये किया, भाई ज्योग्राफी का ये इतना एंगल है, लैटिट्यूड इतना है तो लॉन्गिट्यूड इतना है, तो आप ये भी बताइए कि यूनिवर्स इज एन एनर्जी, हम जो भेजेंगे वो लौट कर मल्टीपल्स में आएगा। बच्चे को बार बार ये डराना या धमकाने से तो बेटर है कि हम उसको बताएं कि वो कितना पावरफुल है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज यहाँ पर आरती बैठी है, आप पता नहीं अब उसके तो बहुत सारे स्टेजेस शेयर करने वाली है, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के इलाइट स्टेजेस शेयर करने वाली है, बहुत सारी प्रेस्टिजियस जगह पर जाने वाली है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ तक पहुंचे, सोचो कि आरती के घर वाले ये सारी चीजें नहीं जानते थे, नहीं प्रैक्टिस करते थे, आज जानने लगे। हाँ। आज मुझे जहाँ तक पता है कि उसके घर में कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जो ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है इसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो इसके पेरेंट्स, इसकी फैमिली बोलते हैं, अरे भाई कुछ तो कर दे, कुछ अच्छा हो जाए घर में, तेरे पास कुछ तो पावर है, ऐसे इसके हाँ। भाई या मम्मी कहती है समटाइम्स। एंड बोलते हैं, अच्छा ठीक है, बट शी डजंट शेयर्स कि वो क्या अप्लाई करने वाली, जस्ट बोलते हैं, अच्छा ठीक है मैं करती हूँ कुछ, एंड फिर वो करती है, फिर उसके बदले में मांगते, मैंने किया, मेरे वजह से घर में ही चेंज आया, पॉजिटिव हो गया सिचुएशन, अब दो भाई मेरे को कुछ दो। तो इस तरीके से ना बच्चों के साथ फन वे में भी ना आप उसके अंदर जो हिडन स्पिरिचुअल नॉलेज है, हीलिंग पावर्स है, इसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज है, वो आप बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। सो इनिशियली आपको उनका गुरु नहीं बनना है। पेरेंट्स और टीचर्स को मैं बोलूँगी पहले आप ही सीखो, या आप उनको कोई ट्यूशन दो, या आप उनको कोई ऐसे क्लासेस में ज्वाइन कराओ जहाँ पर उनको उस तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस तरीके का कुछ गाइडेंस मिले और डेली बेसिस में मिले। सो मुझे आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू कि हम लोग को बताओ एज अ स्टूडेंट कि हम लोग को कैसे अफर्मेशंस बोलने चाहिए, किस टाइप के बोलने चाहिए। यू तो ऑलरेडी नो, हाँ। यू आर वेल वर्स्ड इन दिस, और तुम अपने से अपने दोस्तों को बताएगी तो सुनेंगे नहीं। नहीं। तो शायद आई एम द मीडियम जहाँ से तुम्हारे फ्रेंड्स जब शायद ये वीडियो को देखे तो लोग शायद अप्लाई करने लग जाए। मुझे लगता है बच्चों को जो है ना एफर्मेशंस ऐसे बोलने चाहिए जो सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड ना हो, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ना एक चीज ठूसा गया है कि तुमको अच्छा परसेंटेज लाना है तब तुम्हारे माँ बाप तुमको प्यार करेगा। हाँ। ठीक है। दूसरा, बच्चों में एक चीज बहुत रहता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, जो ये उम्र है ना टीनेजर वाला, उसके बाद बच्चों में रहता है कि हमारे पास वैसे अपीयरेंस है कि नहीं, हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, हमारे बाल अच्छे हैं कि नहीं, बिकॉज वो लोगों में ना वो अपीयरेंस को लेकर चीजें ज्यादा चलती है। दूसरा, फ्रेंड्स को लेकर ज्यादा चलता है। तीसरा, उनको उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें ना फ्रेंड्स को कंपेयर करके एंजॉयमेंट वाली होती है। तो मुझे लगता है बच्चों को सबसे पहले ये एफर्मेशंस बोलना चाहिए कि आई एम हेल्दी, आई एम मेंटली स्ट्रांग, आई एम फियरलेस, क्योंकि बच्चे अगर डरपोक बन जाए ना तो फिर अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव, आई एम मोटिवेटेड, आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम गुड एट कम्युनिकेशन स्किल। अगर बच्चों को ना रोज कोई अप्रिशिएट करे ना तो बच्चे बहुत ग्रो करने लग जाते हैं, उनका हैप्पी हार्मोन्स बनता है। तो मुझे लगता है एफर्मेशंस में उनको ये भी ऐड करना चाहिए कि आई गेट अप्रिशिएटेड ऑन अ डेली बेसिस, my teacher loves me, my parents loves me,
माई फ्रेंड्स लव्स मी, आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरे कजन्स के साथ मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग है ना। उसके बाद आई एम अ गुड लर्नर, आई एम अ गुड लर्नर, आई एम सराउंडेड विद पॉजिटिव, पीसफुल, हैप्पी, रिच, काइंड एंड सक्सेसफुल पीपल। ये तो उनको बोलना ही है बच्चों का। उसके बाद ये होना चाहिए कि माई पेरेंट्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये उनका एक अच्छा एफर्मेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चे अगर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तो सब कुछ हो जाएगा। तो बच्चे को अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है तो उनको ये भी डालना है कि I know how to apply law of attraction and law of attraction brings many positive things in my life। ऐसा उनको एफर्मेशन शुरुआत में डालना शुरू करना है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि एफर्मेशन से कुछ नहीं होने वाला है, उनको लग रहा है नाटक कर रहे हैं, क्योंकि झूठ ही बोला जा रहा है ना शुरू में तो एफर्मेशन। अब वो कह रहा है आई एम फियरलेस, लेकिन भाई महा डरपोक लड़का है, तो जल्दी से तो फियरलेस बनेगा नहीं। इसके लिए उसको ना लास्ट में एक स्पेशल एफर्मेशंस बोलना चाहिए, मैं मानूं या ना मानूं, मेरे सारे एफर्मेशंस काम करते हैं। ये एफर्मेशंस बोलना है लास्ट में। तो ये सारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए। मैं पेरेंट्स के लिए भी बता देती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए उनके पेरेंट्स को करना रहता है, क्योंकि पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक डीएनए कनेक्शन रहता है। तो पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बच्चे के लिए हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो बोले मेरे बच्चे सब सुने। सबसे पहले पहले ना पेरेंट्स को खुद को रिप्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। पेरेंट्स तो स्कूल भी चूज करते कॉम्पिटिशन लेके, है ना, उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे तो हमारे बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े। पेरेंट्स कपड़े भी लेते कॉम्पिटिशन के हिसाब से, पेरेंट्स बच्चे को खिलाते पिलाते भी कॉम्पिटिशन के हिसाब से, पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं क्योंकि किसी और घर का बच्चा डॉक्टर है। तो हमें पहले पेरेंट्स के लिए भी एफर्मेशंस डालना बहुत जरूरी है कि आई लव माई किड, मेरा बच्चा जो है वो अच्छे एंड मोटिवेटेड लोगों से सराउंडेड है, उसकी लाइफ की जो फ्यूचर है वो उसके टीचर्स बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर दे रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे ट्यूशंस में जाता है। पेरेंट्स के दिल में ना हमेशा उसके टीचर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो जब तक पेरेंट्स रिस्पेक्ट नहीं करें बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ट्यूशन से इतने साल पढ़ाए, मैंने देखे पेरेंट्स बच्चे के सामने ही मुझे सुना देते, तो बच्चा मेरा क्या ही सुनेगा। और जब मेरे जाने के बाद पेरेंट्स कितना चुगली करते होंगे मेरा, तो बच्चे को मैं मोटिवेट कर पाऊंगी कभी? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इसीलिए पेरेंट्स को पहले इनिशिएटिव लेना है। तो पेरेंट्स को खुद बोलना है कि आई एम वेरी पॉजिटिव, खुद को बोलना है कि आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम अ बेस्ट पेरेंट, आई रीड, आई लर्न। पेरेंट्स को खुद, अभी पेरेंट्स के हाथ में भाई मोबाइल है, तो बच्चा भी तो बाजू में मोबाइल लेकर बैठेगा ना, तो पेरेंट्स का भी बुक्स के साथ ना अटैचमेंट बढ़ना चाहिए, तब बच्चे का भी बुक्स के साथ अटैचमेंट बढ़ेगा। तो पेरेंट्स को बोलना है आई लव रीडिंग बुक्स, पेरेंट्स को खुद बोलना है। और पेरेंट्स को नाटक करना है बुक खोल के बैठने का शुरू में, अपने आप फिर पढ़ना पसंद आने लगेगा, बच्चे भी पढ़ने लगेंगे, है ना। पेरेंट्स को बोला है कि माय चिल्ड्रंस, या मेरे बच्चे जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं ना, तो पेरेंट्स को भी बोला है बच्चे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये बेसिक, ये 3-4 अफ़र्मेशन है, बच्चे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बच्चे को मैं बहुत अच्छा लाइफ़ दे रही हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है और मेरे बच्चे को भी मेरे साथ पढ़ना पसंद है, मुझे मेरे बच्चे के साथ मैं बहुत एन्जॉय कर रही हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ये बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पता नहीं कितने स्ट्रगल करते हैं कि वो माँ-बाप बन सकें। तो पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि पेरेंट्स के दिल से ना उनके बच्चे को लेके जो पीक लेवल का अटैचमेंट है उससे निकलना है। इसीलिए बच्चे माँ-बाप के पल्लू में पड़े रहते हैं। तो पेरेंट्स बच्चे के अंदर में जो अटैचमेंट है उसे बाहर निकलने के लिए उनको विपश्यना प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरी तरफ से ये सजेशन है। अगर विपश्यना के 10 दिन जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना, एवरी इवनिंग अगर आप मेरा ही सेशन अटेंड कर लोगे ना, तो आपके अंदर से वो अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। ये पेरेंट्स के लिए हुआ। नेक्स्ट और क्या जानना है? What is your definition of Ho'oponopono? व्हाट इज़ माय डेफिनेशन ऑफ होपोनोपोनो? मैं अपना कुछ डेफिनेशन नहीं बना सकती, क्योंकि होपोनोपोनो के लिए जो डेफिनेशन ह्यूलिन जी ने बनाया है उसको बदला नहीं जा सकता, है ना। तो मुरना मैम और ह्यूलिन जी ने जो डेफिनेशन बनाया है टू क्लीन, Yes. मैं भी वही मानती हूँ। Nice. होपोनोपोनो का 4 फ्रेजेस ही कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, हम कब किसको सॉरी बोलते हैं? जब मेरी गलती होती है तब प्लीज फॉरगिव मी कब कहते हैं? जब हमें इच्छा है कि यार ये माफ माफ कर कर दे। दे ठीक है, मुझे। थैंक यू हम कब कहते हैं? जब वो माफ कर देते हैं हमें। या कोई इंसान हमारे लिए कुछ कर जाता है। हाँ। आई लव यू हम कब कहते हैं? जब हम उस वो इंसान इंसान के तो- लिए हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रहती है, Just- तब हम उस इंसान को आई लव यू कहते हैं। ठीक है, तो होपोनोपोनो यही सिखाता है कि
कोई भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आया है, पहले मानो कि आपकी वजह से आया है मतलब और इसके take, लिए आपको माफी मांगना है। you have to take 100% responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मेरे Yes. वजह से सिचुएशन आया है किसी और इसको और मैं के- ही हील कर सकता हूँ, हम्म, क्योंकि मैं ही पेशेंट और मैं ही डॉक्टर हूँ मेरे लाइफ yes. का। तो होपोनोपोनो एक पेरेंट के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो पेरेंट्स को हमेशा होपोनोपोनो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके दिमाग में ना बच्चों को लेके, जैसे मैंने बताया, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके दिमाग में रहता है कि अरे यार मेरे बच्चे पास नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार मैंने मेरी लाइफ में जो नहीं कर पाया मेरे बच्चे कर ले और मैं इसके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, अरे यार मेरे बच्चे बहुत बदमाश है, या मेरे बच्चे मेरा सुन नहीं रहे हैं, या मेरे बच्चे का मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। तो आपके दिमाग में ना फ़ियर बहुत है, डाउट बहुत है। ये जो रिपीटिंग पैटर्न्स के साथ वो जो फ़ियर एंड डाउट चलता जा रहा है, चिड़चिड़ापन जो हो रहा है बच्चे के प्रति, उसकी वजह से वो सिचुएशन आप मैनिफेस्ट करोगे। तो आपके एक बार के फ़ियर की वजह से बहुत फ़ियर्स आए, और वो फ़ियर आया कहाँ से? प्रोग्रामिंग से, जो आपके जन्मों-जन्मों से आपको प्रोग्रामिंग मिले, आपके माँ-बाप से मिले, आपकी सोसाइटी से मिले, आपके रिलेटिव से मिले। तो वो प्रोग्रामिंग को आपको रिमूव करने के लिए होपोनोपोनो करना है। और मैं एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ आरती, कोई अगर पेरेंट अपने बच्चे के लिए होओपोनोपोनो एवरी डे करे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ना एवरी डे, सिंगल डे वो पेरेंट ना सक्सेस स्टोरी मुझसे शेयर कर सकता है। मैं बोल रही हूँ ना ये word. इतना पावरफुल है It होओपोनोपोनो is. प्रेयर। Declaration कब लिखनी चाहिए? एज पर मी डिक्लेरेशन का मतलब होता है डिक्लेयर करना। जैसे एक हाँ। फिल्म का बता दो एग्जाम्पल, एक हीरो हीरोइन। अब मुझे धुरंधर मूवी इतना चल गया, धुरंधर में बोलती हूँ मैं, ठीक है। अब बताओ कि पहले तो उसको स्क्रिप्ट किया गया रहेगा, हूबहू एक-एक डायलॉग्स को पहले लिख दिए गए रहेंगे, है ना? प्रेज़ेंट फॉर्म में। हीरो ये कह रहा है, हीरोइन ये कह रही है, सारी चीज़ें लिखी गई होगी। वही होता है डिक्लेरेशन। जब हम पहले इसको स्क्रिप्ट कर देते हैं ना, उसके बाद वो फिज़िकल फॉर्म में आता है। मतलब you want your life, like you want that paper which you have written in the diary, it is हाँ, to be translated into reality. That's what रियलिटी। you are जैसे telling. मैं अभी रीसेंट बताती हूँ कि अभी का जो मेरा और भी मेरे अलग-अलग बिज़नेसेस है। आई डील विथ लोन्स इन बैंक, है ना? आई डील विथ बैंकिंग सेक्टर्स एंड ऑल। तो अभी रिसेंटली मैं एक बिल्डर प्रोजेक्ट में गई थी, कोई क्लाइंट को घर खरीदना था, ठीक है? वो कहे कि मैम आप भी हमारे साथ चलिए, आप थोड़ा फ्लैट वगैरह देख लीजिए, अगर सही लगा तो आप बोलेंगे तो हम लोग आपके पास से होम लोन प्रोसेस करवा लेंगे। जब मैं वहाँ पर गई ना, बाहर पूरा बंजर ज़मीन था, ठीक है? एक बस ऑफ़िस बना हुआ है, ठीक है? जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि कैसा बिल्डिंग रहेगा उसका फ़ोटो, आस-पास प्लेग्राउंड कैसा रहेगा, किस डायमेंशन में, किस साइज़ में, यहाँ से डीमार्ट कितना दूर रहेगा, वहाँ से स्कूल कितना दूर रहेगा, स्विमिंग पूल कैसा रहेगा, फ्लैट्स कितने रहेंगे, फ्लैट की साइज़ कितनी होगी, इसकी मेंटेनेंस के चार्जेस कितने होंगे, यहाँ पे पहुँचने के लिए कौन-कौन से ट्रैवलिंग के साथ आप किस तरीके से आ सकते हैं। उसका रंग क्या होगा, उसका रूप क्या होगा, हर एक चीज़ Basically, स्क्रिप्टेड, you are making. पिक्चराइज्ड, हाँ. विज़न बोर्ड की तरह बनाया गया था। और ये हर एक इंसान बनाता है और हर दिन वो लोग वही करते हैं, ऐसा बिल्डिंग बन रहा है मैम, ये बनेगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। तो बताओ ना, सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर्स वही कर रहे हैं ना, वो देखकर भी नहीं सुनते। अब वही लोग जिसको घर खरीदना है, वो अगर अपने घर में बना दे एक बड़ी-सी बिल्डिंग, ठीक है, आस-पास गार्डन, और उसमें लिख दे कि ये मेरा घर है, मैंने ये घर को मैनिफेस्ट किया है और हम यहाँ रहते हैं, क्यों नहीं मैनिफेस्ट होगा? उसने लगाया ही नहीं है, बिल्डर ने लगाया तो बिल्डिंग बिक गई उसकी, हाँ. है ना? कभी ना कभी उसकी बिल्डिंग बन गई, फिर बिक गई सारी, लेकिन हमने बनाया? नहीं। तो डिक्लेरेशंस कहीं न कहीं विज़न जो है हमारा या गोल है हमारा, हम उसको लिख देते क्लियरली और बहुत अच्छे पिक्चराइज़ेशन में लिखते। ऐसे था, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये मज़ा आया, वो मज़ा आया, मतलब जो चीज़ होने वाला है वो हो चुका है। और जैसे कि एक स्कूल स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम्स के लिए लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट 85% आ गए, ये तो नहीं लिखेंगे ना। ये कैसे आया? हम बहुत रोज़ मेहनत किए, रोज़ पढ़ने में इंटरेस्ट जागा, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करे, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे जो भी मैंने चीज़ें खाई, वो मेरे मेरे एनर्जीज़ को अच्छे रखे। तो उसके डिक्लेरेशन में ना उसकी हैबिट्स को लेकर रिलेटेड रहेगा कि मेरे इस हैबिट के कारण मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया। ये होता है डिक्लेरेशंस। अंडरस्टूड? नाउ यू कैन आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट ऑल थिंग्स यू आर पर्सनली प्रैक्टिसिंग डे टू डे? And what is your routine? ऐसे you can ask me. Okay. So what all things you practice every day? हाँ, And sorry, what is the routine? what is the root? फिर बोलती हूँ, ठीक है? हाँ, Okay. What all things you practice every day and what is your routine? अच्छा, my routine. Yes.
Okay. So every morning I wake up around 5:30 to 6 AM. Sometimes ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि कभी-कभी मैं लेट नाइट आई एम राइटिंग अ बुक तो मेरा लेट नाइट हो जाता है तो मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ जल्दी। एंड आई बिलीव सोने का जो 7 घंटा है वो मेरा हीलिंग पीरियड रहता है Yes. एंड आई प्रेफर कि मैं रोज़ रात में सोऊँ, दिन में ना सोऊँ। तो every morning when I wake up 5 or 5:30 I do my morning freshen up routine. I check my breathe. जो भी मेरा स्वर चल रहा है मैं उस स्वर के हिसाब से मेरे कुछ स्वर की प्रैक्टिसेस होती है वो मैं करती हूँ। उसके बाद मैं मेरी मॉर्निंग की एक सेशन होती है 6:30 टू 7:30 के करीब जिसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ। वो मैं लाइव सिखाती हूँ, उनके साथ ही मेरा ग्रैटिट्यूड राइटिंग वो सारी चीज़ें हो जाती है, अफ़र्मेशंस, ग्रैटिट्यूड वॉक वो सारी चीज़ें मैं उनके साथ ही कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा स्टार्ट होता है कि मैं अपने डिक्लेरेशंस को रीड करती हूँ एवरीडे। आई रीड माय डिक्लेरेशंस 2 से 3 मेरे डिक्लेरेशंस है वो मैं रीड करती हूँ। उसके बाद जो मॉर्निंग हमारा ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट का रूटीन रहता है, आई मेक श्योर कि मैं कुकिंग करते समय कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूँ। मैं किसी से भी ऐसे लोगों से बात नहीं करती हूँ, जिससे मुझे नेगेटिव वाइब्स आए। मैं कोई भी मेरे ऑफ़िस के भी ग्रुप से किसी से बात नहीं करती हूँ क्योंकि हम लोग के ऑफ़िस के बैकग्राउंड में सारे नेगेटिव टॉक्स ज़्यादा होते हैं। तो एट दैट टाइम आई सिंग सॉन्ग व्हिच मेक्स मी हैप्पी, आई डू दैट और मैं राम रक्षा स्तोत्रम यूजुअली प्ले करती हूँ। लेटर ऑन जब ऐसा होता है कि अब मेरे पास थोड़ा-सा 15-20 मिनट का टाइम है, तो मैं होओपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ मनी के लिए। उसके बाद में नारायण प्रार्थना आई डू एवरीडे मैं नारायण प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद में फिर पूरा दिन मेरा अपना एंगेज्ड रहता है, वो सब चीज़ें होता है। जब शाम में जब मैं घर जाती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि पूरा दिन क्या-क्या ऐसा मोमेंट था जो बहुत नेगेटिव था, जिसने मुझे बहुत स्ट्रेस दिया। तो मेरा नेक्स्ट डे जो मेरा रहता है ना ग्रैटिट्यूड का, तो वो नेगेटिव चीज़ों में मैं क्या पॉज़िटिव खोज सकती हूँ ना, वो खोज कर मैं उसमें अफ़र्मेशंस डालती हूँ, उसमें ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ कि ये चीज़ ऐसा सिचुएशन आई एम ग्रेटफुल कि इस सिचुएशन से कुछ नया आने वाला है, ये टर्निंग पॉइंट आया है। ऐसा करके मेरा नेक्स्ट डे ऑफ ग्रैटिट्यूड रहता है। एंड आई बिलीव कि मैंने अगर एक भी दिन ग्रैटिट्यूड और होओपोनोपोनो नहीं किया, तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। क्योंकि ये मेरा ना ब्रीथ हो गया, साँस हो गया, जैसे साँस अब रोक के नहीं रह सकते ना, वैसे ही मेरे साथ है कि मैं ग्रैटिट्यूड अगर ना करूँ ना, तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई प्रैक्टिस ना करूँ, तो बेचैन हो जाती हूँ। समटाइम्स होता है कि कहीं मैं ट्रैवल करूँ 1-2 दिन के लिए, तो मेरी स्किप हो जाती है। तो मुझे इतनी बेचैनी होती है कि मैं कभी-कभी बोलती हूँ, "भाई स्टेशन पे रुकी हूँ, प्लेटफ़ॉर्म पे रुक, 15-20 मिनट दो मेरे को पहले ग्रैटिट्यूड लिखना मतलब है।" जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो ना और जब वो अचानक से छोड़ोगे ना तो एक अंदर का बोलता है कि आरती करो। करना, तुमको कुछ छूट रहा है। और येस। जब आप करते हैं ना तो वो फीलिंग सेटिस्फाइड हो जाती है। यस। तो मुझे लगता है कि मैंने मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इसीलिए बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया क्योंकि मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं। आपने क्या-क्या मैनिफेस्ट किया है? मैं पर्सनली अगर बहुत कुछ बताऊँ तो पॉसिबल नहीं है बताना क्योंकि उसके लिए बहुत लंबी लिस्ट है। बट मैंने सबसे ज़्यादा जो मैनिफेस्ट किया है वो ये किया है कि मैंने अपने हेल्दी बॉडी को मैनिफेस्ट किया है। चाइल्डहुड से आई लेके कैन सी योर बॉडी। चाइल्डहुड से लेके जब तक मेरी ग्रेजुएशन ईयर तक मैं नहीं पहुंची थी, मैं एवरी ईयर हॉस्पिटलाइज़ होती थी। ओह वाह! एवरी ईयर मतलब मेरे पापा ना अभी भी कभी-कभी बोलते हैं, "ये मेरा बच्चा ना खाली दवाई खा के बड़ा हुआ है।" तो फॉर द लास्ट आई गेस 5-6 ईयर्स हो गए मैं हॉस्पिटलाइज़ नहीं हुई है। नाइस। ये मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद एट द एज ऑफ 35 बहुत सारे लोगों के पास ना बहुत तजुर्बे होते हैं प्रॉब्लम्स के साथ और प्रॉब्लम और वो सिंपैथी के शिकार होने के लिए, तो मैं सिंपैथी के शिकार से बाहर निकली। आई वाज़ देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई वाज़ लाइक कि समबडी शुड कम एंड लाइक क्या हो गया? ऐसे बोले। तो आई एम लाइक कि ऐसा मेरे लाइफ में कभी कोई नहीं आया कि मेरे को ऐसा बोले क्या हो गया? क्योंकि मुझे पता है उस समय वो सिचुएशन से ना मैं और भी ज़्यादा नेगेटिव होंगी बिकॉज़ सिंपैथी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये हर एक लेडीज़ के अंदर है, हर एक फीमेल के अंदर है। शी इज़ वेटिंग ऑल द टाइम कि मेरे मायके वाले कभी मुझे बोलते, "क्या हो गया तेरे साथ इतना प्रॉब्लम?" कभी उसका हस्बैंड बोलते, "क्या हो गया तेरे साथ इतना प्रॉब्लम?" मतलब वो चाहती कि उसकी प्रॉब्लम को लोग गिने और बोले, "भाई इतनी प्रॉब्लम के साथ ये स्ट्रगल करके रह रही है, तो महान व्यक्ति, इसको तो अवार्ड देना चाहिए।" महान। तो ये चीज़ के बाहर मुझे लगता है कि मैं निकली हूँ एंड जब कोई मुझे ऐसा बेचारा वर्ड से कभी मुझे फ़ील भी होता है कि अब ये वेरी नेक्स्ट मोमेंट मुझे बेचारा बोलने वाला ना, मैं फ़ोन कट कर देती हूँ। एंड दिस इज़ माय मैनिफेस्टेशन कि मैं ऐसी लड़की हूँ। लोग दौड़ते कि अरे अब देखना ये मेरे बारे में इतना प्रॉब्लम्स बताएगी ना कि सुकून मिलता है, कितना मेरे को मानते। बट सिम्पैथाइज़ दे आर करते नॉट हैं। गोइंग टू गिव यू एनीथिंग रादर देन प्रॉब्लम। हुँ। तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन है सबसे ज़्यादा।
आप उसमें और पीड़ा हो जाओगे ना, पीड़ित, हाँ, मैं पीड़ित नहीं रहना चाहती थी, वो मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। दूसरा मैनिफेस्टेशन ये है कि मैं मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस करते हुए भी मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए और मैं उसके साथ जी गई। मैं उसके साथ बाहर निकल गई। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैम मेरे लाइफ में भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया लेकिन इतना प्रॉब्लम है भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर, मतलब लोग नेगेटिव हो गए बट मैं फिर भी पॉजिटिव रह पाई। ये मेरे लिए सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है। एंड फॉर मी इज लाइक एवरी टाइम आई एम स्माइलिंग, दिस इज माई मैनिफेस्टेशन, आई एम हैप्पी, दैट इज माई मैनिफेस्टेशन। और मैं ये भी कह दूं कि कैमरे के सामने जो पर्सनालिटी होती है ना, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, वो पीठ पीछे या बैक स्टेज या रियल लाइफ बहुत अलग होती है। बहुत। क्योंकि कैमरे के पास हम वही कहते हैं जो हमारे लाइफ की कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, स्ट्रगल हम नहीं बताते जो, और बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर भी जो बहुत गलत आदतें रहते हम नहीं बताते। बट मैं ये कहूँ कि वो सबके साथ है, मेरे साथ भी है, बट स्टिल आई नो हाउ टू बी हैप्पी। और मैं भी रोती हूँ बट मैं उसके बाद बाहर कैसे निकल सकती हूँ ये मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने सिखाया, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। मुझे बुक्स रीड करना बिल्कुल पसंद नहीं। यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, तुमने पढ़ाई करने में बहुत मेहनत किया, मैं उतना पढ़ाकू नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, बट मुझे अब किताबें पढ़नी पसंद है, दैट इज माई मैनिफेस्टेशन। माई फैमिली लव्स मी, दैट इज माई मैनिफेस्टेशन। मेरे ग्रुप, मेरे कलीग्स, मेरे बॉसेस ऐसे हैं कि वो लोग मुझे सुनते हैं, दैट इज माई मैनिफेस्टेशन। मैंने भी कॉर्पोरेट जॉब की, बहुत चुगली, बहुत पॉलिटिक्स देखे हैं, वहां से मैं इजीली बाहर निकल गई, दैट इज माई मैनिफेस्टेशन। लोग मुझे आज सुन रहे, दैट इज माई मैनिफेस्टेशन। I am doing life coaching, that was my purpose, that is my manifestation. You are here, that is my manifestation. मेरे माइंड में आरती मुंबई आ रही, मुझे उसको पॉडकास्ट में देखना है, that is my manifestation. Every single day, every moment, I am manifesting whatever, that is my manifestation. मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ फिर भी मेरे पास कुछ ना कुछ आ रहा है, that is my manifestation. I am writing a book, that is my manifestation. I am hosting today, that is my manifestation. सो देर इज एन नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन जिस पे किताबें लिखी जा सकती, पर सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन मेरे लिए मटेरियलिस्टिक नहीं है, मेरे लिए फीलिंग से जुड़ा हुआ है, मेरे इनर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, मेरे हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है। और मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आ गई कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे हमेशा खुश नहीं रख सकते। ये मेरे लिए मेरी सबसे कहते हैं ना, माई माइंड की रीप्रोग्रामिंग जो हुई है ना पॉजिटिवली, दैट इज द रियल मैनिफेस्टेशन दैट आई अचीव्ड सो लॉन्ग। सो आरती, थैंक यू सो मच एंड इट वाज वेरी एंगेजिंग, मुझे बहुत पसंद आया। मतलब मैं मेरी स्टूडेंट के साथ इतना देर बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं कभी मेरे स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं मानती, मैं मेरे स्टूडेंट को फ्रेंड मानती हूँ। और मेरे बहुत ज़िंदगी भर हम ऐसे दोस्त बने रहेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, हर चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे लाइफ में कि हमें देखकर दूसरे इंस्पायर हो। क्योंकि सोशल मीडिया में इजीली बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं जो लोगों को बिल्कुल इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। मतलब वो लोगों की लाइफ कुछ बदल रहे, बर्बाद कर रहे, वो ग्रो कर जा रहे हैं आजकल, देख रहे होंगे। बट अच्छा करके लोगों की लाइफ में हम चेंज ले, 10 जन की लाइफ में भी हमारे वजह से पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना, तो इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए कुछ नहीं होता है। क्योंकि आजकल मैं जब मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे रील्स और वीडियोस देखती हूँ ना कि जिससे लोग बहुत इजीली बिगड़ सकते हैं। और उनके फॉलोअर्स भाई साहब यू 1000 फॉलोअर्स क्विकली बढ़ते जा रहे हैं। मतलब लोग बहुत इजीली बर्बाद हो सकते हैं, तो उनको आबाद करना बहुत मुश्किल है। और अगर हमारे वजह से कुछ लोग भी अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं ना, माइंड को रीप्रोग्राम कर पा रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। यूनिवर्स ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है ना। तो मेरी एक विश बुक है जो मैंने 2 साल पहले बनाई है, जिसमें मैंने बहुत एनर्जीज दिया है। दिस इज द विश बुक दैट आई हैव रिटन। आई रियली बिलीव इन नारायण भगवान एंड आई डू नारायण प्रार्थना ऑन अ डेली बेसिस। मेरे लाइफ की जो बेसिक मतलब बोलते हैं ना प्रेयर्स है, वो मैंने इसमें लिखा है। और लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज के प्रेयर लिखे हैं मैंने इसमें, जैसे कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या प्रेयर, अच्छे आदतों के लिए जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स के लिए मैंने लिखा है, उसके बाद पेरेंट बनने के लिए मैंने लिखा है, अच्छी पहचान बनाने के लिए मतलब मैंने प्रेयर लिखा है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैंने लिखा है, बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए मैंने लिखा है। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है ना कि ये बुक सारे पेरेंट्स और सारे बच्चों के पास होने चाहिए। तो क्योंकि इसके जो पेजेस है इसके बाद इसमें यू कैन राइट योर विशेस। एक बार तुमको बस विशेस लिखना और एवरीडे उसकी जो प्रैक्टिस है वो तुमको करनी है। एंड आई बिलीव कि नारायण भगवान विल ब्रिंग ऑल योर मैनिफेस्टेशंस ट्रू। सो दिस इज फॉर यू। सो आई वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड जिसे ऐसा लगता है कि उनके लाइफ की टर्निंग पॉइंट जो आई है, उनके जो स्ट्रगल की वजह से आई है,
जिसके वजह से उनकी लाइफ बहुत तेज़ी से और बहुत पॉजिटिवली बदली है। मतलब यानी कि जब आप प्रॉब्लम में थे तब आपको ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब आपकी लाइफ में चेंज आया आपके एफर्ट्स से, जब वो बदलाव आया और जब आपको ये विश्वास हुआ लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है और आपको जब ऐसा लगा कि जब मैं कर सकता हूँ तब बहुत लोग कर सकते हैं, और अगर आपके मन में ऐसा है कि यार मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पास आपकी ऐसी स्टोरी है जिसे सुनकर ना बहुत सारे डिमोटिवेटेड लोग मोटिवेट हो सकते हैं, जिसे सुनकर बहुत सारे लोगों को लगता है अगर ये कर गया तो भाई साहब मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसी स्टोरी अगर आपके पास है और आप ऐसी स्टोरी डिलीवर करना चाहते हो, तो आई वेलकम यू इन माय पॉडकास्ट। माय नेम इज़ राखी शर्मा एंड आई फील कि मेरे पास जो भी गेस्ट आए, वो ऐसे गेस्ट आए जो कोई भी बढ़ा-चढ़ा कर ना बोले, वो सिर्फ़ इसीलिए बोले कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ हमारी वजह से बदल सके। थैंक यू सो मच।